तेजस्विनावधीतमस्तुमाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज हम जी ये जो पैसेज था स्वामी विवेकानंद का पोर्शन हमने भेजा था ना, जी डायलॉग, उसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ तो क्वेश्चन के पहले सुधीर मजूमदार कहते हैं उनको पर जल्दी जाना है कहीं पे, सबसे पहले अभी समरी भी बाद में करेंगे, क्यों सुधीर? सुधीर जी नहीं महाराज जी, समरी हो सकता है, पहले पहले अच्छा समरी ठीक है, समरी हो जाए तो पहले सुबह। अब कौन कौन समरी कर रहा है? भगवान मैं करो। हाँ जी। Today we are discussing the complete works of Swami Vivekanand, Conversation and Dialogues, Meeting 11, page 172 to 109. Swamiji elaborates on the cause of India's degradation to be the selfishness of priestly class, monopolizing our Shastras to maintain their authority over the non-Brahmin classes. The Brahmins introduced non-Vedic and immoral doctrines and belittled all other classes. This resulted in slavery and the world looking down upon Indians with contempt. Swamiji found Indian society to be guided by local usages instead of by Shrutis and Smritis. The solution, per Swamiji's advice, is to introduce the study of the Vedas and inspire Indian people to be guided by them. Those Vedic laws which are unsuited to present times should be altered to suitably serve as a new model for present day society, Swamiji said. Then Swamiji explains further that human effort can achieve anything. Purity and unselfish labor can make us far greater than even Manu and Yagyavalkya. Swamiji advised, keeping our Shastras as basis, we should understand Swamiji's works in their true spirit and apply ourselves to work. We must practice what we preach. The essential truths, the underlying purpose of the scriptures, the Manusmriti, should be compiled into a Smriti. Taking care all people can benefit by following those rules. Swamiji goads us to have faith in ourselves and that we all have infinite power and were once the Vedic rishis. We need to rouse that infinite power and apply ourselves heart and soul. Do not care about transitory wealth and fame. Swamiji did not care for mukti and would readily undergo 100,000 births to train up a single man. We must die like heroes than to wear and rust out. Seeing people's misery and the thought of their glorious future, Swamiji works tirelessly, even giving up samadhi and the sphere of Brahma. Swamiji inspired the disciple to give up worldly life and stay in the holy company and atmosphere of Belur Math, conducive to sadhana. Meeting 12. Walking in the Belur Math grounds, Swamiji sang a bhajan ending with the line, "Many sadhus and sannyasins will come to Belur Math in the course of time." Swamiji reminisced about Sri Ramakrishna saying, "The ground under the Bilva tree is very holy and meditating there awakens our spirituality. In the beginning, one must take the help of such external aids. Only after long practice, one gets established in the knowledge of the Atman. By such practices, the obstacles to the manifestation of the Atman are overcome. These practices are still a kind of work, and work has no power of directly manifesting the Atman. The Atman manifests in its own effulgence. A seeker of the Atman should undergo spiritual practice without an eye to its results." Swamiji explains that we cannot give up work because as humans, we cannot help doing some kind of work. The disciple then asks,
if we renounce the fruits of work, then what impetus will we have to do the work? Swamiji answers that by doing work with motive for a very long time, one notices that one work merely leads to another, even leads from one birth to the next. Then the awakened Vivek of man wants to break this endless chain of work. The aspirant finds that work with motive brings no happiness. Then he renounces action. But man's constitution makes him work. And so he takes up unselfish work, giving up all desires for its fruits, because he knows that fruits of work lead to rebirth. So the Karma Yogins outwardly appear to work but are unattached to it. Giving up fruits means the yogin's work is not for his own body, mind, or happiness. Rather, it's for the good of the world. Such yogis never take a false step and are unselfish without any thought of personal gain. When the mind is merged in the Atman, it results in dispassion for the enjoyment of fruits here or hereafter. When such a yogi returns to the plane of I and mine, then his body functions like eating go on solely based on prior habit or sanskars. The disciple then asks, if work is not the means of realizing Brahman, why does Swamiji emphasize work? Then Swamiji explains about the tamas, inactivity and inertness of India at that time. It appears from outside as the calm or balanced state of sattva, but is actually an inert state. In contrast, the Western people have enterprise and devotion to work and are full of rajas. So our people need to develop rajas to bring life, vitality, and have the necessities of life. Towards this end, Swamiji dedicated his life to rouse the masses with the power of Vedic mantras and his message of fearlessness. He admonished to tell people of their infinite potential, power, and immortal bliss. The way is to let people have food, clothes, and enjoyment, and then only preach them on how to free themselves from the bondage of enjoyment. The people of our country need to be taught to exert themselves, use Western scientific methods to become self-sufficient in food and clothing first, before they can come towards spirituality. Swamiji saw his vision of India becoming full of activity and self-reliant. Swamiji then talks to the disciple about the strict rules for brahmacharis so that they can get established in the ideal of sannyas. Only the people belonging to the mutt will feel closeness with the sadhus and can appreciate the ideals of the mutt. Sri Ramakrishna has cast the sadhus in a new mold, sometimes lecturing like gentlemen and at other times doing austerities in seclusion. This method is conducive to rouse the people of our country. Finally, the evening ends with Swamiji's boat excursion over the Ganga, passing Dakshineshwar temple and also a visit to Govind Babu's garden house. Meeting 14. Nag Mahashay salutes Swamiji and gives pranam to Swamiji as Shivji. Swamiji explains how Nag Mahashay's bhakti has transformed him to be immersed in divinity, losing body consciousness. All the brahmacharins and sannyasins joined to partake of the holy company of Nag Mahashay and Swamiji. Nag Mahashay in turn says with utmost humility that he is very insignificant and has nothing to say about Sri Ramakrishna. He has only come to see Swamiji, the glorious helper of Sri Ramakrishna. Only Swamiji has understood Sri Ramakrishna and cast in his image.
Swamiji said, if mother wills, he will visit Nag Mahashay at his home one day, at which Nag Mahashay felt ecstatic. Swamiji said his one desire is to rouse the country to Sanatan Dharma and asks for Nag Mahashay's blessing. Nag Mahashay says that Swamiji's will has united with the master's will, so he will definitely succeed. But Swamiji's health was not good enough to do such strenuous work, Swamiji said. To that, Nag Mahashay recommended that the mutt inmates take great care of Swamiji's invaluable body. Swamiji says he felt a great desire to work, but wasn't sure if he was doing what is right. Nag Mahashay replied that Swamiji did not know fully, as Sri Ramakrishna had locked the treasure to enable Swamiji to do his master's work. Swamiji then mentioned about his prior visit to Nag Mahashay's home. After the master's passing, Nag Mahashay kept a fast, and Swamiji, accompanied by Hari Maharaj, visited Nag Mahashay's home for bhiksha. Serving the Swamis with food, Nag Mahashay himself refused to eat. He did not want to feed his body, in which God had not been realized. Only after much persuasion, Nag Mahashay ate. Such brilliant and deep was the love and respect between the master's two disciples, Swamiji and Nag Mahashay. Hari Om Tat Sat. Excellent, excellent, बहुत बढ़िया. excellent, excellent. I've been tracing it, in the book. The whole thing I was excellent. You have done wonderful. अभी तो इच्छा होती है कि हर बार तुमको ही बोलना चाहिए. Thank you, Maharaji. Excellent, very good. So shall we start with the question? Yes. Yes, Subir Majumdar has to go somewhere, so we take his first. Maharaji, I was worried whether I'll pass because last minute preparation was there. Sorry. No, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. Maharaj, You know, it is- Mr. was- Majumdar, please take I was my com- questions. I was completely checking it, it is not there. I was वो जो text है मिलाते हुए मैं देख रहा था, ये देखिए, बहुत ही अच्छा. चलो, सुबीर मजूमदार. Unmute करो. Maharaj, को भी नहीं दिख रहा. Maharaj ji, Itu ji has Maharaj, to go after to. Mr. Majumdar, please take my questions because I'm already in one of the retreat. Okay. Let Subir Majumdar do first. Yes. Pranam Maharaj ji. Yeah. My first question, Maharaj ji, is on page 172, first paragraph. Swamiji says the non-Brahmin classes are now slowly rousing themselves. Their faith in Brahminical scriptures and mantras is getting shaken. And he further adds that through the spread of Western education, all the tricks of the Brahmins are giving way. How so? What is exactly does he mean by इसे Brahmin पहले trick? बता. You see, remember, Ji Maharaj. there are two major religious movements or revolutions in India: Ji. Hinduism and Jainism and Buddhism. Right. Are again because of the tyranny of Brahmins. Right. ये पंडागिरी अपने रूल्स बना रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं, और करप्शन. जी. यहाँ तक था कि हम तो जो छोटे थे तो पास में गोपाल मंदिर था, तो हम उसके सामने तो जाते थे तो डरते थे. हमको ऐसा बता दिया था कि वहाँ सब जो है गंदा ही सब होता है, रासलीला वगैरह होती है, तो उसके अंदर सब करप्शन ही है. जी. तो हिंदू टेम्पल्स के बारे में ये हाथ. तो ये एक स्थिति ऐसी थी, और जो स्वामी जी एंडोर्स कर रहे हैं कि वो लोग अपना जो वर्चस्व है उसको बनाने के लिए जबरदस्ती रूल्स रेगुलेशन ऐसे डालते थे कि जिससे लोगों के ऊपर अत्याचार होवे और उनको मजा माल मिले, मतलब उनको they enjoy and they get profit advantage. So basically this is trick. और tricks of brahmanas यानी रूल्स बनाना. जी. जो दूसरे कास्ट है, दूसरे लोग हैं, उनको दबाने के
का स्वामी के लिए बनाना, these are mainly मैं कंटेक्स्ट को समझना चाह रहा था महाराज जी। जो आप कह रहे हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दे आई अंडरस्टैंड दैट दे केम ऑलमोस्ट 2000 to 2500 years ago, जब इनका आगमन हुआ था। लेकिन स्वामी जी इस वक्त कह रहे हैं कि देयर फेथ इन ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स एंड मंत्रास इज गेटिंग शेकन, जो कि वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं उस टाइम मतलब ये 1890s का। तो उस टाइम क्या हो रहा था? आश्चर्य है कि इतने बड़े दो मूवमेंट्स के बावजूद ये ब्राह्मण लोग बचे हुए हैं हाँ, और अभी भी वही बदमाशी कर रहे हैं। तो अभी कोई अवेकनिंग हो रही है, यही कहना चाह रहे स्वामी जी? अब तो यहाँ तो इंटरनेट हो गई है भाई। अब अवेकनिंग क्या, हाँ, अवेकनिंग अभी तो अब अवेकनिंग तो है। और कुछ सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन उस टाइम कौन सी अवेकनिंग की बात कर रहे थे? थ्रू दी, पता नहीं स्वामी जी किस अवेकनिंग की बात उस समय कह रहे थे, ये बता। हाँ, यानी आज से करीब 150 साल पहले की बात स्वामी जी के बारे में बता रहे थे। जी जी जी। ठीक है नहीं? प्रॉब्ली वो जो उस टाइम ब्रह्मो समाज, ये सारी चीजें आ गई थी, हाँ, ये भी सब they could have played a role. Yes, Maharaj. Maharaj, that second question on, एक मिनट सुबीर जी, मेरे हाँ, को यहाँ पे महाराज जी, मैं इस कंटिन्यूएशन में कह रहा हूँ कि सुबीर जी ने जो पढ़ा है उसके आगे की लैंग्वेज लाइन है, थ्रू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑल द tricks of the Brahmins are giving way like the banks of the Padma in the rainy season. Do you not see that? महाराज जी, तो यहाँ पे जो ये स्वामी जी बता रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन वाज सो पावरफुल दैट दे सेकंड द वो उस समय के वेस्टर्न सवाल ही नहीं उठता। वो एजुकेशन था ही क्या? वेस्टर्न एजुकेशन के सिवा और कोई एजुकेशन थी क्या? कोई अपने ब्रह्मो, यहाँ तो वेस्टर्न एजुकेशन मिलती थी। हाँ, अरे जो हमको एजुकेशन उस समय मिलती थी वो वेस्टर्न एजुकेशन ही तो मिलती थी। उसे आँख खुल जाते थे, वो कहते किसी को मत विश्वास करो, किसी चीज की विश्वास मत करो, विचार करो। और उस टाइम आज की बात तो छोड़ दीजिए, ईस्ट वेस्ट अब एक हो गया है। तो महाराज जी, वेस्टर्न एजुकेशन के पहले कोई भी एजुकेशन कौन सी थी? तो भारत में थी ये चतुर्वर्ग क्या कहते हैं उसको, वर्णाश्रम धर्म की बात थी। वर्णाश्रम, वो विद्यापीठ वगैरह थी। ओके, तो ये गुरुकुल के बाद इमीडिएटली ये वेस्टर्न एजुकेशन जंप हो गई है। पहले गुरुकुल था अपने वहाँ। हाँ, गुरुकुल वगैरह थे। गुरुकुल, हाँ, तो उसके बाद ये इमीडिएटली वे जंप टू द वेस्टर्न अब एजुकेशन। छोड़ो ना बात, उस बात तो सब हो गई, जमाना बदल गया। हाँ, इनफैक्ट वही शायद मैं इसलिए कह रहा था ब्रह्मो समाज, क्योंकि उस टाइम जो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे बंगाल के, वो वेस्टर्न एजुकेशन से ही इन्फ्लुएंस थे, शायद इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं। ओके महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 173, स्वामी जी इज टॉकिंग अबाउट द कोड्स prepared by Raghunandana and Mitakshara, just as Manu prepared his own codes also. तो मैं जानना चाह रहा था what were these codes and why didn't Swami ji approve of them? पता नहीं बाबा, हमने कभी ये कोड देखे नहीं। हमारे सिद्धार्थ ट्रेनिंग सेंटर में भी कभी इसकी बात नहीं हुई है, इसकी बात नहीं हुई कुछ बात नहीं करते हैं। तो ये है कुछ नहीं है। ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड होंगे और रघुनंदन ने थोड़ा लिबरल किया होगा इतना। बट अब आजकल तो कुछ भी नहीं। अब कैसे चल रहा है अपना हिंदुओं में जो शादी होती है और क्या होता है, और श्राद्ध क्या करना करता है, ये करना पड़ता है, किसी तरह से चल रहा है, कोर्ट से चल रहा है ये। हाँ, ये लॉज शायद उन्होंने कुछ बनाए होंगे, हाँ, उस टाइम के लिए। ठीक है महाराज, ये अभी इतना रेलेवेंट भी नहीं है। On page 182, now we find Swamiji telling the disciple to find new avenues to production aided with Western science. मतलब disciple को बोल रहे हैं, मतलब he was telling all the, trying to give a message to the youth and the people of India कि अब production में there are so many avenues to production which can be aided with Western science. तो उसको वो प्रोत्साहन दे रहे थे. Now, did Swamiji want the Indian people to become entrepreneurs with a welfare mindset? Welfare mindset. Definitely self-dependent entrepreneur। अरे इंडिया के बिरला और क्या क्या सब जो है सारी दुनिया में फैल गई है।
हाँ हाँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया चला रहा है। इंडिया के जो हाँ ये गुजरात ये जो है, इनके जो कंपनीज जो है वो सब फॉरेन में भी चल, हाँ, स्मॉल बिजनेस हाउसेस को प्रमोट करना चाह रहे थे। वो इनफैक्ट सब ठीक है। आजकल आजकल करंट दुनिया में वी हैव, आजकल ये स्टार्टअप्स और वेंचर्स और ये सब को कितना आजकल प्रोत्साहन मिल रहा है। स्वामी जी थॉट ऑफ इट सो मेनी इयर्स अगो महाराज। यस यस यस। हाँ हाँ, वही, दैट्स ऑल महाराज जी, यही ओके, तीन सवाल। ओके, क्या बात है इतू? प्रणाम महाराज जी। इतू क्या हुआ? इतू घोष क्या हुआ? शी इज एट ए क्या कहते हैं, रिट्रीट एट गुरुग्राम आश्रम। वो बीच में शायद उनको मौका मिल गया था सवाल करने का, ओहो, इसलिए। मैं तो बोलना चाहिए था ना, उसको पहले कर देते। वो आ गए हैं। ईतू घोष तो प्रेजेंट हैं, माइक भी अनम्यूटेड है। ईतू मैडम। हाँ, वो कह रही थी मेरे बाद सवाल करेंगी। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। तो देवाशीष, महाराज जी प्रणाम। नमस्ते महाराज नमस्ते नमस्ते सर। अच्छा, वेट ईतू जी वेट, कहीं बिजी हो गए होंगे। वो बोल तो नहीं रही हैं, माइक तो अनम्यूटेड है लग रहा है, कैमरा भी अनम्यूटेड है। देखो तो ध्यान ईतू, रखना संजय, फिर आगे चले किसी को लेने, जी जी। कुंडू जी को लेने। Itu ji, people are waiting for your questions. Maharaj ji is waiting. Can you hear? वो सुन नहीं पा रही शायद। बाद में ले लेते हैं ना उनको। हाँ। चलो कुंडू। Yes, Maharaj. Pranam Maharaj. My first question, Maharaj, page 174. Purity and unselfish work that made them Manu and Yagyavan. We always thought that leadership of society is a function of intellectual ability. We can consider both of them as social अच्छा, ओके ओके reform. कुंडू। महाराज, हाँ। आप, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही थी, आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, सुनो सुनो, अब बोलो। जी, मेरा प्रश्न था कि द ग्राउंड अंडर द बिल्व इज वेरी होली. Meditating here quickly brings about the awakening of the religious instinct. Sri Ramakrishna used to say so. So my question is how these religious trees bring about an auspicious surrounding or aura around these. Does everyone get the effect? You see, ये है ट्रेडिशन हो गई है पुराने जमाने में। पहले बिल्व वृक्ष की संभवतः बिल्व वृक्ष की पूजा वूजा करते होंगे, कोई कहानी होगी, शिव जी से रिलेटेड है। बिल्व पत्र जो है शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। ये क्या है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ चीजें उसमें होली हो गई हैं। वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष को अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार की ये बातें हो जाती हैं ट्रेडिशन से। अलग 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 चीजों में है, जानवरों में भी जो गाय गाय होली हो गई है ना। जी जी जी, तो गाय गाय को बहुत अपना पवित्र मानने लग मानते हैं। जी तो जी, ये ट्रेडिशन हो जाती है परंपरा के कारण। तो अब ऐसे जैसे है कि नदी है तो गंगा बहुत पवित्र हो गई है। इस प्रकार से कोई शहर है तो वो पवित्र, काशी बहुत पवित्र हो गया है। तो ये हजारों वर्षों की ट्रेडिशन से ये चीजें हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि हम क्या करते हैं, अरे भाई ये हो गए हैं, लेकिन कोई बैठ के, आज तक तो मैंने कभी बिल पत्र के नीचे बैठ के किसी को ध्यान करते नहीं देखा। हमारे बनारस में तो कई कई बिल पत्र हैं हमारे कैंपस में। जी, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? जी, और मेरे और बाकी 3 प्रश्न मैं पूछ लूं? हाँ बोलो, हाँ पूछो। हाँ, greater manifestation of the soul takes place through education and culture, through concentration and meditation, and above all through sacrifice. So my question is, what type of sacrifice has been referred here? Is it about the life of sannyasin only? No, no, no. Sacrifice, you know, every moment you are doing sacrifice, you have to sacrifice your interest. Very types of sacrifice है. Physical sacrifice, तपस्या करना, austerity करना, संयम करना, पैसे को देना, लोगों को डोनेट करना, डोनेशन करना, also come under sacrifice. ये सारे के सारे sacrifice हैं. सारा लाइफ जो है
हमें याद रखिए, सारा लाइफ जो है स्वार्थ के लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। दिस इज जी द जी फंडामेंटल। यानी ओके तपस्यामय जीवन। गीता में भगवान 3 प्रकार के तप बताए हैं भगवान ने। वो क्या है? गुरु देव देव गुरु द्विज प्राज्ञ पूजनम शौच माध्यवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। तुम देखना 6ठे चैप्टर के 3रे 4थे 5वें श्लोक में। उसके अच्छा बाद में कहते हैं दूसरा है अनुद्योग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत्। उद्वेग रहित वाक्य बोलो, सत्य बोलो, प्रिय पर बोलो और स्वाध्याय करो। यह हुआ वाणी का तप हुआ। और मन प्रसाद सौम्यत्म, मन को प्रशांत रखो। मन प्रसाद सौम्यत्म आत्म विनिग्रह, और मन को संयम करके रखो। यह हुआ मानसिक तप हुआ। तो देख लेना 6ठे अध्याय के 3रे से 6ठे अध्याय में मुझ 3रे से वो श्लोक है, उसमें जी मानसिक, शारीरिक और वाचिक तपों का वर्णन है। तो ये है हमारे फंडामेंटल लाइफ के पोर्शन है। वन सबसे इम्पोर्टेंट तपस्यामय जीवन हमको बिताना है। जी समझ गए? जी इसको सेक्रीफाइस जी का समझ मतलब गए। हाँ क्या है? बहुत तपस्या। और अच्छी तरह समझे हैं। अच्छा ठीक है। माय सेकंड क्वेश्चन इज from the text, for instance, in those whom we consider really great men or ideal characters, we scarcely observe any external struggle. So my question is, what are these outer struggles which are not found in men? Inner struggles are supposed to be in mind. That is also question. और संसार में जो है फिजिकल आउटर स्ट्रगल, पैसे कमाने के लिए आउटर स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ अपने शत्रु हैं उनके अगेंस्ट हमको रहना पड़ता है, अपने को संभालना पड़ता है, मकान की रक्षा करनी पड़ती है। आपको क्या कहते हैं ये अपने इंश्योरेंस करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बाहरी स्ट्रगल्स कितनी होती है? अच्छा ये तो है एक्सटर्नल स्ट्रगल पे। जी लेकिन जो सन्यासी है वो तो कुछ नहीं करता। ये क्या है? ये हम्म संसार में जितनी डिफिकल्टीज हैं, जॉब हम्म जॉब को खोजना है, ये सब के सब जो है एक्सटर्नल स्ट्रगल। जी इंटरनल स्ट्रगल क्या है? इंटरनल स्ट्रगल है चित्त की निरोध, वासनाओं का त्याग करना, हम्म संयम करना। ये है जी इंटरनल स्ट्रगल। जी जी हुआ? जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा, और माय थर्ड क्वेश्चन इज, श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से one fails to attain realization if there be but a slight defect in the body. So my question is this defect is concerned with the ill health or something else? इट इज नॉट इल हेल्थ। इल हेल्थ तो सबको होता है। कोई क्या है जन्म से ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे शारदानंद जी थे। तो ओ शारदानंद जी को आंख में क्विंट था। क्विंट था मालूम है? तो जी हाँ आंख जी में शारदानंद जी का आंख में क्विंट था। अच्छा जी तो शारदानंद जी का फोटो नहीं, देखो केयरफुली देखना स्वामी शारदानंद जी का फोटो। अच्छा स्क्विंट समझते कि नहीं? तुम तो हाँ हाँ जी डॉक्टर हो। जी हाँ, स्क्विंट यानी टेढ़ी आंख। जी गुड अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर पैर में घुटने में कोई तकलीफ होवे, तो सीधा बैठ हाँ नहीं सके कोई, तो ध्यान करने में अच्छा आसन लगा के कोई नहीं बैठ सके, तो ये बाधा हो जाती है ना। जी 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 ये इस प्रकार की बाधा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ज्यादा हम्म उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। अच्छा छोटी मोटी चीजें चल जाती है, सबके जीवन में होता है। संजय अच्छा लेकिन जो ध्यान में बैठने के लिए प्रॉब्लम हो जावे, हाँ और जो लंबे समय तक साधना में नहीं बैठ, बाधा डाले। कमर में, हाँ, कमर में हाँ बाधा हो जावे। अच्छा ठीक हो गया? ठीक है जी। प्रणाम हाँ, महाराज, प्रणाम अच्छा महाराज। ठीक है। क्या हुआ? अभी जा रहे हो? कहाँ जा? ऑलरेडी यू आर समवेयर इन द डिस्ट्रिक्ट। Yes, ओके, man. Yes, सुन लो। man. Maharaj, page 174, telling purity and unselfish work that made them Manu and Jagyavan. यस Now, we always thought that leadership of society is a function of intellectual ability.
आ नहीं रहा आवाज, बदल फंस गया। कोई कनेक्शन इश्यूज हो गया होगा, फ्रीज ठीक कर है, गए। अब आ गया। कुंडू जी, यू हैव टू रिफ्रेम द क्वेश्चन, वो बीच में सुन नहीं पाए, नहीं, दोबारा बोलो। मैं ये बोल रहा था कि स्वामी जी बोल रहे हैं कि प्योरिटी एंड अनसेल्फिश वर्क हैज मेड देम ग्रेट। नाउ वी कंसिडर दैट इफ यू हैव टू डू सोशल रिफॉर्म, इधर पे सोशल रिफॉर्मेशन की बात चल रहा है, वी थॉट दैट इट रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बट स्वामी जी तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडरशिप की बात छोड़ दीजिए, वो तो किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो लीडरशिप, आज के जमाने में लीडरशिप की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, लेकिन बिना बिना कैरेक्टर के कोई व्यक्ति महान हो सकता है क्या? यहाँ तक कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ले लीजिए, तो वो तो इंटेलेक्चुअल भी था और कैरेक्टर भी था। सो बिना कैरेक्टर के नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिटी एंड कैरेक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्यूरिटी एंड अनसेल्फिशनेस। अगर आदमी है, प्यूरिटी नहीं होगा तो कौन लोग उसको विश्वास करेंगे? तो बोलो। अनसेल्फिश नहीं होगा, पैसा कमाने की कोशिश करेगा, जहाँ कहीं भी होगा तो कौन उस पर विश्वास करेगा? बोलो। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मस्ट बी देयर, बट कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैरेक्टर में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, प्यूरिटी एंड अनसेल्फिश। हाँ, इसी बात में महाराज ये एक मतलब मेरे मन में ये सवाल बहुत दिन से ही है। स्वामी जी का कंप्लीट वर्क्स में कहीं भी उन्होंने टैलेंट या जीनियस ये सब बातों की इस्तेमाल नहीं किया। तो लाइक फॉर हिम कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स। नथिंग बट कैरेक्टर। स्वामी जी का कंप्लीट वर्क में तो कैरेक्टर की बात होती है। यस, और स्वामी जी को पढ़ने से थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बातें आ जाती है, क्योंकि वो बहुत महान कैरेक्टर अपने इंटेलेक्चुअली ग्रेट थे, तो उनको पढ़ने से वो हमको गेट इंटेलेक्चुअल नॉलेज होती है। यस, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद इज कैरेक्टर। यस। महाराज जी, मैं कुछ बोलूं महाराज जी? हाँ बोलो। ये देखिए, ये 100% करेक्ट। अभी जो जितने इंटेलेक्चुअल्स है, ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, बार्कले, जहां से पढ़ा हुआ है, ऑल जेल में है अभी। मैं चोरी का, ये रेप का केस में, मर्डर का केस में, तो ये क्या इंटेलेक्चुअल है? इंटेलेक्चुअलिटी वही तो मैंने कहा कि वो तो छोड़ दो, आज की बात छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 178। कुंडू जी एक मिनट। महाराज जी, हाँ। इसके कंटिन्यूएशन में मैं ये पढ़ रहा हूँ, हिंदी में लिखा है, स्वामी जी और पवित्रता और निस्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु याज्ञवल्क बने थे, या और कुछ चेष्टा करने पर हम भी तो मनु याज्ञवल्क से बड़े बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यों नहीं चलेगा? तो महाराज जी ये क्या बताना चाहते हैं कि हम भी मनु आप भी याज्ञवल्क और मैंने मनु बन सकते हो। अपने चरित्र के कारण याज्ञवल्क और मनु बन सकते हो। जूम मीटिंग तो इतना सीख रहे हो, उसके बाद में अब याज्ञवल्क और मनु बन के महान बन गए तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे, आप जो कहेंगे उसको मानेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि कैरेक्टर है कि नहीं। आप महाराज जी एक मिनट, मनु और निस्वार्थता और पवित्रता चाहिए। ये बराबर है कि निस्वार्थता और पवित्रता होने पे ही किसी को एक्सेप्ट किया जा सकता है, पर मनु और याज्ञवल्क ने जो बातें लिखी थी या बताई थी वो पवित्रता और इंटेलेक्चुअल भी था, उनमें इंटेलेक्चुअलिटी थी, बिना उससे थोड़ी होता। जी बराबर, बस महाराज जी, राइट, थैंक यू जी, प्रणाम। महाराज जी, अपनी से आ जाता है ना, पवित्रता और दोनों क्वालिटी होने से इंटेलेक्चुअल अपनी से आ जाता है, शुद्ध बुद्धि आ जाता है। आ जाए तो अच्छा है। आगे यस, सेकंड क्वेश्चन। यस महाराज, एक मिनट महाराज, पेज 178। Spiritual practice is a kind of work
And so long as there is work, the Atman is not discovered. Work has no power of directly manifesting Atman. It is only effective in removing some veils that cover knowledge. Since the uncovering is possible only through work, why won't we call that we attain knowledge due to work? हाँ, I couldn't follow the explanation of Swamiji. ओके It is ओके ओके, understood. समझ गया आपकी बात। हाँ, हाँ, एक एक प्रसिद्ध श्लोक है, शंकराचार्य का है, विवेक चूड़ामणि के ही शब्द, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। सुना है कि नहीं? हाँ महाराज, पढ़ा है। क्या कहा है? कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, वस्तु की उपलब्धि नहीं होती, वस्तु की सिद्धि होती है विचार के द्वारा, कोटि कर्म के द्वारा नहीं होती। चित्त शुद्धि से क्या होता है? वो आपको अधिकारी बनाता है और उसके बाद में गुरु आपको उपदेश देते हैं, और गुरु के जो उपदेश को आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता है। तो पहले कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि, उसके बाद में उपदेश दे अहम ब्रह्मास्मि हूँ, विचार करना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। चित्त की शुद्धि मात्र से ये नहीं हो जाता कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर अभी भी शरीर बना रहता है। उसके बाद में अधिकारी हो गया तो उसके बाद गुरु उसको श्रवण कराते हैं, विचार करते हैं, देखो तुम क्या हो, हम क्या है, स्वयं क्या है, दोनों एक कैसे हैं, उसको करते हैं। उसके बाद कहते हैं मनन करो, और उसके बाद गहरे निधिध्यासन के बाद द्वारा उसको तत्व ज्ञान। हाँ महाराज, ये तो विवेक चूड़ामणि में पढ़ा है, लेकिन कथामृत में तो ये ठाकुर बोल रहे हैं शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन एंड ज्ञान एक ही है, मतलब he says that everything is. वहां पे ठाकुर न भले न भी बोले, लेकिन फंडामेंटल ये है कि आत्मा का स्वरूप उनको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं, मैंने जैसे बोला कि वेल, जैसे पर्दा बोल रहा है कि आत्मा स्वयं वेद्य है, कि उसके ऊपर एक कवर पड़ा हुआ है। दैट कवर गेट्स क्लियर्ड वंस योर थ्रू वर्क यू बिकम अनसेल्फिश एंड यू बिकम हायर एंड हायर, योर माइंड बिकम्स हायर ऑन द हायर प्लेन। एक बार इट इज ट्रू, यानी आपका जो चित्त शुद्धि होगी, लेकिन जो फंडामेंटल अविद्या है ये केवल कर्म के द्वारा नहीं जाएगी। अविद्या यानी मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, यह अविद्या जो है वो तत्व ज्ञान के द्वारा नहीं जाती। अरे सिर्फ कर्म से नहीं होगा। Swamiji, can I interrupt here and ask one thing? Yes. Swamiji, that I was just reading today, in fact, that Swamiji said that you tear the veil by every good thought, right? So if the Chitta Shuddhi means the veil is fully torn, separating me from God or Atman, whatever. So doesn't the truth become self-evident because the veil is completely gone? अगर किसी ने केवल चित्त शुद्धि करता है, स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। स्वामी विवेकानंद ऑलवेज टॉक्स ऑफ आत्मन, कंप्लीट वर्क्स में आत्मन ब्रह्म की ही बात है। That is the reason. Right. So that is right. Okay. Yes. Thank you. Yes. Maharaj, next question is page 184. Now it won't do to merely quote the authority of our ancient books. Is this why Kathamrita is the scripture most suited for our times? How it is different from the old scriptures? ओल्ड स्क्रिप्चर जो है वो क्या है कि वो पूरा ओल्ड ऑर्थोडॉक्स कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं, समझे ना? वहाँ समाज सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में, इस दृष्टि से मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। और आप स्वामी और कथामृत की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद को क्यों नहीं बोलते? कंप्लीट तो स्वामी विवेकानंद अथॉरिटीज हैं आज के युग में कॉन्टेक्स्ट, वो है आज के स्क्रिप्चर।
कथामृत तो है, लेकिन ठाकुर स्वामी विवेकानंद के टॉक्स जो है उनका जो है वो भी स्क्रिप्चर है आज के जमाने हाँ, तो महाराज इसके मतलब जब हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एक तो स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में सिर्फ यही किताबें पढ़ें और पुराने किताबें ना पढ़ें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। ठीक महाराज। अच्छा, ऐसा है कि स्वामी जी ने क्या कहा है, स्वामी जी ने एनकरेज किया है उपनिषद पढ़ने को। हाँ महाराज। और उस उपनिषद को पढ़ोगे उपनिषद और स्वामी जी में बहुत फर्क है। सेम चीज स्वामी जी हमेशा इज टॉकिंग ऑफ उपनिषद। उसमें गुरु शिष्य संवाद है, जैसा श्री रामकृष्ण में है गुरु शिष्य के साथ है, लेकिन वो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है। उपनिषद की ही बातें ठाकुर और स्वामी जी ने मॉडर्न। और स्वामी जी को पढ़ने से कथामृत को और बेहतर समझा जाता है। ये भी कथामृत को उपनिषद को सब बेहतर समझ। जी ठीक है। Then page 188. Now here, the moment you know it, your play of human life will be at an end. The same word used to be said about Swami Brahmananda as well. What is the significance of this statement? They were realized souls. What else is there to know for them? तो आप बेसिक डिफरेंस कर रहे हैं, बेसिक मिस्टेक कर रहे हो। ये हाँ, ब्रह्मानंद जी और स्वामी विवेकानंद ये केवल रियलाइज सोल्स नहीं थे। रियलाइज सोल तो उनको भी हो सकता है और ब्रह्मानंद भी हो सकता है। हम रियलाइज हो गए और हो जाएंगे, हमारे चले जाएंगे। ये लोग जो है ये अधिकारी होते हैं, ये जगत के कल्याण के लिए भगवान के साथ आते हैं। ब्रह्मानंद जी जो थे वो राखाल थे, उन्होंने अपना स्वरूप जाना और उसके बाद मुक्त हो गए। उसके पहले उनको कुछ लेना देना नहीं है रियलाइजेशन, वो तो बचपन से शुरू से ही रियलाइज है। स्वामी विवेकानंद सप्तर्षि मंडल के थे। जिसने पूछा आपने आपने को पहचान लिया है? मैंने पहचान ईश्वर कोटिस। हाँ, मैं सप्तऋषि मंडल का हूँ। आपने अपने स्वरूप को जान लिया? चुपचाप छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, मैंने जान लिया। उसके बाद उन्होंने स्टेज छोड़ दिया। ब्रह्मानंद जी भी जो है वो राखाल राज थे। वो कहाँ से आए थे? वो भी तो कृष्ण के सर्कल में। तो ये लोग जो है ये दैवी रेफरेंस का डिवाइन नेचर होता है, इसको समझो। नॉट मियरली एक रियलाइजेशन। एक तो ऑर्डिनरी हम लोग जो है वो मानव स्वरूप ही है, और रियलाइज होने पर हम क्या कहते हैं, हम आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन बीच में इन लोगों का दैवी रियलाइज कहते हैं दैवी नेचर, डिवाइन नेचर, और इसके कारण दे आर डिफरेंट। दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई दे व्हेन दे कम टू नो देयर नेचर नहीं, इसके मतलब लाइक जैसे मैंने ब्रह्मानंद जी के जीवनी में जो पढ़ा कि एंड में जाके ब्रह्मानंद जी का 2-3 दिन लास्ट फ्यू डेज ही वाज कंप्लीटली मर्ज्ड इन द स्पिरिट ऑफ कृष्ण। तो इसके मतलब क्या पूरा जिंदगी भर उसको पता नहीं चला ही इज पार्ट ऑफ कृष्णा? नो नहीं पढ़ा। अच्छा। हाँ, स्वामी जी को नहीं पढ़ा। ठाकुर बार बार बोलते थे जिस दिन पता चल जाएगा कि वो कौन हो छोड़ के चला जाएगा, तो रहेगा यहाँ पे। उनको अज्ञान में डाल के बना दिया। ब्रह्म ज्ञान सब समझते थे वे, लेकिन अपना स्वरूप जो है कि मैं तो सप्तर्षि मंडल का एक ऋषि हूँ, ये नहीं जानते थे। तो ब्रह्मानंद जी भी तो ये है राखाल राज। these subtle differences we don't realize महाराज। मतलब कथामृत में पढ़ा ठाकुर ने बोला कि मेरे पास चाबी रख लिया। What does it mean? We don't have that subtle difference. We don't have even. ये तो उसी स्फीयर से आए हैं। हम लोग जो है वी हैव रियलाइज। हमारा जो अमीबा थे उसके बाद में घोड़ा कुत्ता बने हैं, उसके बाद आदमी बने हैं, उसके बाद में थोड़ा अच्छे बने हैं, थोड़ा सत्संग हुआ है, दीक्षा हुई है। ये हम लोगों का इवोल्यूशन है। इन लोगों का ऐसा इवोल्यूशन नहीं, तो नहीं, ये ऊपर से आए हैं। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। यू अंडरस्टैंड गुड्डू? हाँ महाराज, अभी
मतलब ये सब हमारा धारणा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, धारणा करे तो तुम हो ही जाओगे ना, जी। तुम वही हो जाओगे। अब महाराज जी, ये नाग महाशय ने ये कहा था कि स्वामी जी शिव जी का अवतार है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। हाँ हाँ, ये सब देखो, मतलब शिव जी के अवतार हैं। फिर ये हाँ, बोलता इसी है लाइन कि में कोई लिखा बोलते हुआ हैं कि वो सप्तर्षि मंडल से आए हैं। जी। तो अब ये भाई सप्तर्षि मंडल में भी कोई शिव जी के अवतार होंगे, वो मालूम नहीं बाबू। अच्छा अच्छा, राइट। हाँ। और ये चीज Yes, वो लोग जो है, ये हम लोगों से भिन्न है ना। हम लोग तो क्या है, आत्मा है। हम्म। और हम रियलाइज धीरे धीरे तपस्या करके, और उसके बाद में निर्विकल्प समाधि किसी जन्म में हुई और उसके बाद मुक्त हो जाएंगे। तो हम तो ये ऑर्डिनरी जीव हैं। बाकी ये तो- लोग जो हैं, ये ऊपर के अवतार हैं, ऊपर के हैं, वो नीचे आते हैं जगत कल्याण के लिए और ऊपर चले राइट। ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। जाते। Thank you for clearing this concept, Maharaj. It was very good. ओके ओके। अच्छा, उसके बाद आपका निवेदिता है। हाँ जी महाराज। ओके। पहला प्रश्न महाराज है, कैन कर्म योगी गेट ब्रह्म ज्ञान? Page 179. Sometimes Swamiji is telling that Karma Yogin also can get Brahma Gyan. Sometimes he is not telling. So I am asking, can Karma Yogin can get Brahma Gyan? प्योर कर्म योगी नहीं होता। प्योर कर्म योगी जो है, बिल्कुल 100% कर्म योगी जो है, उसमें हाँ। भी वो ईगो बना रहता है कि मैं कर्मयोग कर्म कर रहा हूँ। चित्त शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में महावाक्य और श्रवण मनन निधिध्यासन, थोड़ा ज्ञान होना पड़ेगा, या फिर थोड़ी भक्ति होनी चाहिए, भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, दास का संबंध होगा या शाक्य का संबंध होगा। ये संबंध या तो दास के साथ होना चाहिए या फिर ज्ञान होना चाहिए। कर्मयोग वेरी वेरी अच्छा। इंपॉर्टेंट, बिना उसका नहीं हो। लेकिन केवल कर्मयोग से, as far as I think, it is not. महाराज जी, मतलब हर कर्म योगी के मतलब ये ज्ञान होना जरूरी है, या तो ज्ञान होगा या भक्ति होगा, भगवान के साथ या संबंध। भक्ति होना। पर महाराज जी, यहाँ पे स्वामी जी ने बताया है कि कर्म योग पे ज्यादा ध्यान दिया है कि थ्रू यू टू बी कर्म योग करो, कर्म योग करो। हाँ, स्वामी जी कर्मयोग के ही बताने, क्योंकि हम लोग अभी ज्ञान के और भक्ति के अधिकारी नहीं है। राइट जी महाराज। और दूसरा जो प्रश्न है महाराज, वो इतू जी ने पूछा, वो जो मतलब सिटिंग अंडर द बेल ट्री डूइंग द मेडिटेशन इज मोर बेनिफिशियल और नॉट, आपने तो बताया। यस। ऐसा है कि भाई हम, मैं भी जानता, बोलते हैं हमारे यहाँ तो बनारस का हमारा कैंपस जो है बेल ट्री से भरा हुआ। तो कोई तो बैठता नहीं, कोई तो कभी नहीं बैठता उसके पीछे पीछे बैठकर। कभी देखा है क्या? नहीं, हम लोग वो हमारे एक पूजा होती है, कोई उत्सव होता है दुर्गा पूजा समय, तो उसके पीछे थोड़ी थोड़ी पूजा कर लेते हैं, बस। तो हम बेल तो ट्री को जानते हम नहीं। दुर्गा पूजा में करते हैं महाराज, बेल ट्री का करते हैं आह्वान। बस। ठीक। चलो। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज एस्टेब्लिश्ड इन आइडियल सन्यासीज? एक जगह लिखो। वो तुमने क्लियरली सेंटेंस केयरफुली पढ़ो, सेंटेंस ही क्लियर नहीं किया है तुमने। शुरू से पढ़ो तो ठीक। मेरे को ये तुमने गुस्सा हुआ। क्लियरली पढ़ा तुमने। वो है जी, पेज नंबर 180। हाँ, ये पढ़ो। हाँ, उसमें है स्वामी जी टेलिंग, नहीं, फर्स्ट लाइन जो है, मतलब पेज नंबर 184। 184। हाँ, 184 का पहला लाइन। हाँ, when they are established in the ideal of sannyasa, they will be able to mix on an equal footing with the worldly men without any harm. But now, if they are not kept within the barriers of strict rules, they will all go wrong. In order to attain to ideal brahmacharya,
one has in the beginning to observe strict rules regarding chastity. Not only should one keep oneself strictly aloof from the least association with the opposite sex, but also give up the company of married people also. अब तुम्हारा क्या बराबर। संशय है? एस्टेब्लिश हाँ, ये मतलब एस्टेब्लिश, इसका अर्थ क्या है वो पूछ रही थी मैं। प्रतिष्ठा होना एस्टेब्लिश इन आइडियल ऑफ संतान। देखो दो जगह स्वामी जी हाँ। बोलते हैं, those who are established in the knowledge of आत्मा, जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है, उनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन हैव नो नीड फॉर सच, इसको विवेक करने की आवश्यकता उनसे पड़े हो गया। अब उसके बाद है, लेकिन कहते हैं कि therefore in the beginning one has to take the help of external aids and learn to stand on one's leg. Later on when is established in the knowledge of आत्मा, तो एस्टैब्लिश का अर्थ है किसी भी वस्तु में प्रति आत्मा के ज्ञान में प्रतिष्ठित होना, उसके बाद बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जब वे संन्यास के आदर्श में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय च, तब क्या होगा? उसके बाद में सब कुछ छोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझ में आई कुछ बात? तब तक सब रेस्ट्रिक्शन है। हाँ। महाराज जी, इसका कंटिन्यूएशन में एक छोटा सवाल है मेरा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रूल्स वेर फ्रेम्ड फॉर सन्यासीज एंड ब्रह्मचारी बाय स्वामी जी, तो ये पूरी रूल्स की लिस्ट कहाँ पे मिल पाई? क्योंकि यहाँ तो इन्होंने 2-3 शब्द ही कहे हैं। तो तुमको नहीं दी जा सकती। अच्छा दिलीप भाई जी, तो तुम तो गृहस्थ हो। हाँ, तुम्हारे रूल्स हैं, गृहस्थ के रूल्स मालूम है? हाँ, गृहस्थ के रूल्स है हमारे पास, है बिल्कुल, हम फॉलो भी कर रहे हैं। और जब तो आप सन्यास रहते ब्रह्मचारी बनोगे ना, तब ब्रह्मचारी रूल्स बता दिए जाए। तो हम लोग को ब्रह्मचारी रूल जो है, जब ब्रह्मचारी होते हैं, जब ब्रह्मचारी होने वाला होता है उसके पहले हमको अच्छी तरह समझा दिए जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मचारी होते हैं। और सन्यास के बाद में हमारे को सन्यास के पहले 1-2 महीने अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाती है, सब रूल्स बता देते हैं, उसके बाद ब्रह्मचारी सन्यास हो जाता है। तो ये रूल सबको बताए नहीं जाते। अच्छा जी महाराज, प्रणाम। महाराज चौथा क्वेश्चन है, स्वामी जी इज टेलिंग दैट he has one desire that I can wake up the sense of eternal religion, Sanatan Dharma. Then I shall know that Sri Ramakrishna's advent and our births are fulfilled. My question is that has it really happened? क्योंकि हम अभी देखते कितना अधर्म सब जगह ज्यादा बढ़ गया है। अवेकनिंग ऑफ क्या? अवेकनिंग ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं ना? अवेकनिंग ऑफ इटर्नल रिलीजन। हाँ, अवेकन ऑफ इटर्नल रिलीजन। तो अब ऐसा या तो करो, लेकिन उसको ये भी तो देखो, उस समय यानी गांधी जी जो है उन्होंने मॉरलिटी को बेसिस किया था जी। जब फ्रीडम हुआ उसके बेसिस पे मॉरलिटी था। अब आजकल के भारतीय जनता पार्टी वो भी रिलीजन को बेसिस बना के कर रही है। तो ये चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे चली गई हैं। अब ऐसा है कि लोग अगर आपको देखो तो लगता है कि करप्शन है, तो करप्शन पता नहीं पहले जो था, तो पहले जमाने में तो करप्शन की ताकत ही नहीं थी। जब स्वामी कहा कि स्वामी जी ये तो आप जो बोल रहे हैं, तो लोग जो है वो आदमी डाका डालना चोरी करने लग गया है, तो बहुत खुश हुए स्वामी जी। अरे ताकत तो आई उसमें, है ना? बात है ना, एक वैसा घटना है, वो स्वामी जी किसी उपदेश दिया, ये किया, वो भाग गया, उसका आत्मा जागृत हो गया। तो आत्मा जो जागृत हुआ तो पहले वो रजोगुण के रूप में मैनिफेस्ट होता है। ठीक। अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। वो बहुत ऊंची बात है। पहले तो भारत में स्वामी जी ने, किसी ने कहा था ना कि स्वामी जी भारत बहुत अच्छी कंट्री है, इसके अंदर तो कोई क्राइम बहुत कम है। तो स्वामी जी ने सिर पीट लिया था, मालूम है ना? अरे भगवान, मैं तो चाहता हूँ कि क्राइम होवे, ताकत ही नहीं है लोगों में क्राइम करने की। तो बोल तो रहे फिर एक जगह पड़ा। एक बच्चा बिल्कुल दुबला पत्ता होता है तो कुछ नहीं कर पाता है, पड़ा रहता है।
जब खा पीते रहता है ना तो सर घर घर पर तो तोड़ना पीटना चालू कर देता है, तो माँ को बहुत खुशी होती हाँ। है। महाराज क्राइम के बाद फिर सत्व गुण आ सकता है क्या? वो तो क्राइम, पॉइंट इज इट इज नॉट दैट यू क्राइम है, वो एक लेवल आता है उसमें, उसके हाँ, बाद में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, और एक्चुअली स्पीकिंग फॉरेन कंट्रीज में जो क्राइम है उसकी तुलना में भारत में क्राइम बहुत कम है जी। हम्म, हम्म। चलो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई स्वामी जी वॉज डाउटफुल अबाउट मेकिंग मठ एंड मिशन? नाग महाशय को बार बार पूछ रहे हैं ना, तो उसका कारण क्या है? नहीं नहीं, ऐसा है कि कोई बड़ा काम कर रहे हैं, नया काम कर रहे हाँ, हैं, तो थोड़ा सा हाँ, चिंता होती है, डाउट होता है, ऐसा कुछ नहीं। दिट वाज नॉट वेरी सीरियस। अच्छा अच्छा, ठीक है। छठवां प्रश्न है, व्हाई लोअर क्लास फेथ इन, हाँ यहाँ पर एक बार बोल रहे हैं ना कि लोअर क्लास हैव लॉस्ट फेथ इन शास्त्र एंड मंत्र इज गेटिंग, पेज नंबर 173, व्हाई लोअर क्लास फेथ इन शास्त्र एंड मंत्र इज गेटिंग शेकन? पहले तो उनको देखो, अधिकार नहीं दिया जा रहा, जब अधिकार हाँ, न ध्यान नहीं दे जा रहा, रहे हैं यज्ञ करो, तो क्यों दीक्षा दो, उनको? हाँ, यज्ञ करो, पूजा करो, दक्षिणा दो, और सब ये है। और जो बाकी जो और आर गोइंग वेरी सेकेंडरी है ना। नाउ अब स्वामी जी यही कि पहले यही सब करते थे, अब नई पूजा से प्रारंभ किए, शिव ज्ञान जीव से। तो ये पुराने जो हाँ, ब्राह्मण हाँ, कल्चर से ना, पुराने उसके अंदर हाँ, लोगों की श्रद्धा चली गई। वो क्या है कि आउट ऑफ हम्म, डेट, ऑब्सोलीट हो गए, अब तो खैर थोड़ा बाद जमाने बदले। हम्म, ठीक है। जी जी, बस हो गया महाराज जी, महाराज जी ये कहना चाह रहा था कि नागमा शाह के बारे में बोल रहे थे ना, तो उस बिकॉज नागमा शाह वॉज द आइडियल हाउस होल्डर, इसलिए उनकी शायद राय दी जा रही थी। हाँ, उसको तो हम रामकृष्ण मिशन में तो उनको राम को तो आइडियल हाउस होल्डर ही मानते मतलब हाउस होल्डर्स के राजा कह सकते हैं, हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए एक शायद आदर्श स्वामी जी है, उनको, हाउस होल्डर्स के आदर्श आदर्श। हाँ शायद ऐसा इसलिए। ऐसा है ना कि वो दो किताबें हैं, दे लिव विद गॉड, गॉड लिव विद देम। दे लिव विद गॉड में तो ठाकुर के कितने 20-25 जो है गृहस्थ भक्तों का वर्णन है पूरा। जो अपने हाँ, अपने में सब लोग हाँ थे, गृहस्थ थे तो कैसा गृहस्थ होना चाहिए, उसके 15-20 दृष्टांत वहां पर थे। हाँ, तो शिवानी। हाँ, जी प्रणाम महाराज। हाँ भाई। हाँ, महाराज फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रूव किया है मैंने। व्हाट इज द रीजन दैट वेस्टर्न एजुकेशन ओवरटुक द स्क्रिप्चर्स एंड मंत्रास ऑन पेज नंबर 172? आपने जो किया है 172 क्या क्या है? फर्स्ट पेज ही है महाराज। वेदास, the Brahminicals who made monopoly of religious books kept questions and sections, prohibitions in their own hand, and repeatedly calling other races as low and wild. They put this belief into their head that they will really suck. If you call a man how low in I am, etc. के बाद में क्या है? It is hypnotism. Non-Brahminical classes are now slowly rousing. Their faith in Brahminical scriptures and mantras are getting shaken. Through the specter of education, all the tricks of Brahmin are giving away. इसे डिस्कस हो गया लाइक बैंक से। कहाँ क्वेश्चन क्या तुम्हारा? महाराज क्वेश्चन ये जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी ना, देयर फेथ ऑफ ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स एंड मंत्रास इज गेटिंग शेकन, इसी में से बनाया है कि व्हाट इज द रीजन दैट वेस्टर्न एजुकेशन ओवरटुक द स्क्रिप्चर्स एंड मंत्रास। नहीं, व्हाट इज ओवर नहीं। what to do? अगर आपको मॉडर्न एजुकेशन दी जावे और रैशनल एजुकेशन दी जावे, तो आप देखेंगे कि ये मंत्र जो स्क्रिप्चर्स जो हैं उसको समझाना पड़ेगा उनको कि ये भी रैशनल है, ठीक है। नहीं समझाओगे, ऐसा कैसा ही करो, बिना सोचे समझे करो, तो लोग कोई नहीं मानेगा। और ये ब्राह्मण लोग जो है, ये पट्टे ये है, ये नहीं समझाते कि ऐसा करना चाहिए, होगा ये करेंगे समझ। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन जो है ये सब को उड़ा रही है।
Did you got the point or not? जी नहीं, ठीक से फिर से देखो। वो क्या ना, the हाँ non-Brahmin classes are now slowly rousing themselves. Their faith in Brahminical scriptures and mantras is getting shaken. Through हाँ the जी stress of Western education, all tricks of Brahmins are giving way, like the banks of Adnai. इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन है? हाँ जी क्या महाराज। क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन दैट वेस्टर्न एजुकेशन ओवरटुक द स्क्रिप्चर्स एंड मंत्रास? मतलब उनका वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो तो रैशनल एजुकेशन है। हाँ वो तो जानना चाहती है कि हम ये मंत्र करें तो उससे लाभ क्यों होगा, कैसे होगा, हमको रीजन बताइए। बिना उसके हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये क्या है, जबरदस्ती पंडे लोग हमको बोल रहे हैं कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसा मंत्र करना चाहिए, इसे ऐसे हवन देना चाहिए। ये फालतू की बातें हैं, इससे ये होगा, ये कैसे होगा? ऐसे हमें रीजन बताइए। ये लोग रीजन नहीं बता करते हैं, इसलिए जो है वेस्टर्न एजुकेशन इनको दबा। अच्छा वेस्टर्न एजुकेशन इज बेस्ड ऑन रीजन। हाँ, रीजन की बात। रीजन इसमें दो चीजें होगी, एक तो समझाना चाहिए लोगों को कि ये ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स क्या है, लॉजिक देना चाहिए। और सेकंडली ऐसा है ना कि स्वामी विवेकानंद को जब आप पढ़ेंगे ना तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। स्वामी जी ने कुछ चीजों को, फालतू चीजों को बिल्कुल उड़ा दिया। सेकंडली कर्मकांड में कहा कि कर्मकांड से कुछ नहीं हो। अगर कर्मकांड भी हो तो ठीक ठीक श्री रामकृष्ण जैसा हो, बाकी उसके छोटे छोटे ऐसे स्ट्रगल करने से नहीं हो। करेक्ट। Secondly, they have to be tuned in accordance with the Western education, with the rationality. रैशनैलिटी है वेस्टर्न एजुकेशन। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली ट्यून्ड भी करना पड़ेगा उनको, उनको समझाना पड़ेगा। अरे आजकल तो इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो है वेस्ट में चली गई ना, वेस्ट में फैल गई है। जी जी, तो दे आर आल्सो बाउंड बाय नेशनल होते हुए भी वे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको। जी जी जी, कर्मकांड के पीछे भी उसको समझाना पड़ेगा कि कर्मकांड का भी एक रैशनैलिटी है। अगर नहीं समझाओगे तो कैसे? महाराज जी, यहाँ पे स्वामी जी ने एक जगह ये भी बताया है शरद चंद्र को कि यू हैव टू रिफ्रेम मनुस्मृति एंड दिस अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये तो रिफ्रेम हो रहा है ना स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क, रामकृष्ण वचनामृत और कितना सब नया लिटरेचर आ रहा है। एक प्रकार से रिफ्रेम ही हो रहा है। ओके महाराज जी इसी क्वेश्चन का सिलसिले में एक चीज मुझे ये आ रहा कि the faith in Brahminical scriptures and mantras is getting shaken. Actually, स्वामी जी जब वेस्ट में गए थे तो those people were not at all oriented towards our scriptures and all. So in spite of that, he had told them the scriptures and other things in not. I mean, he has described it in a different way, and then they took up the things. No. ठीक है, ये उनका रैशनैलिटी उसको बताइए ना तो सब स्वीकार करेंगे। That means हमारे स्क्रिप्चर्स रैशनल है। वो ऐसा है कि बाएं हाथ से खाना खाने से तुमको पाप लगेगा, दाहिने हाथ से खाइए। तो अब उनको समझाइए आपको क्यों पाप लगेगा बाएं हाथ से खाने। बिना समझाए कैसे काम चलेगा? उसका रैशनल बताना पड़ेगा। The rituals were the problem, not the कई रूल्स रेगुलेशंस है। महाराज जी, आपने जो बताया उससे जस्ट अदर ये हमको बताया गया है कि बहुत सारी चीजें वैसी है कि जिसको तुम समझाते हो तो सामने वाला नहीं समझता है, लेकिन यदि उसको धर्म का नाम दे दिया तो वो बहुत जल्दी समझ जाता है। ये इसी के विरोधी तो स्वामी विवेकानंद हैं। यही तो बात है, यहाँ यही बात हो रही है। जी, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमें यह कहा जाता है 11 करिए, पूनम करिए, ये रिलीजियस इसलिए बनाया गया है कि यदि ये कहा जाए कि महीने में 2 दिन उपवास करना चाहिए तो कोई तैयार नहीं होता है, पर यदि उनके ऊपर थोप दिया कि ये करने से भगवान खुश होते तो इमीडिएटली करने लग जाते हैं। नहीं, हाँ, तो उसी प्रकार का धर्म रहता है।
लेकिन मॉडर्न आदमी नहीं मानेगा इस चीज को। अच्छा, नहीं मानेगा। Today fasting has been rationalized. There are scientific evidence. मैं क्यों करूं, मैं क्यों उपवास करूं? अगर उसको ये बता दिया जाए कि हेल्थ के लिए अच्छा है तो जरूर उपवास करेगा। जी जी महाराज जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, Maharaj, page number 173. Is this Brahmins who stops the other classes to read the Vedas and scriptures, or it's written in the Shastras? No, they stop it. They stop. और उसके बाद जो शास्त्र में कहा गया है उसका अर्थ क्या है जानते हैं? शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, उसको कल्चर नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसने साधन चतुष्टय नहीं किया, वो सुबह उठ के ध्यान जब नहीं करता, वो साफ नहीं रहता, उसके कल्चर नहीं है, बेसिक कल्चर नहीं होता। ये बात है। हम लोग जैसे हैं तो हमको शास्त्र दिया जाता है तो ब्रह्मचारी का आपको ब्रह्मचारी के लिए इतने वर्ष रहना पड़ता है तब शास्त्र होता है। मतलब क्या, एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगी तो आप शास्त्र नहीं समझ सकेंगे। और जो शूद्र है, कौन शूद्र है? जो जिनमें डिसिप्लिन लाइफ नहीं, शराब पी रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, वही तो शूद्र लोग हैं। इस प्रकार के देखेंगे डिफरेंट, ऐसे लोगों को समझाएंगे, शास्त्र को बड़ा बताएंगे तो वो कैसे समझेंगे? That was the basis. Okay. Means eligibility is mentioned there in the Shastras. एलिजिबिलिटी नहीं, अथवा अपने क्या कहते हैं उसको, अधिकार, अधिकारी, ठीक है, एलिजिबिलिटी करेक्ट, एलिजिबिलिटी। Third question, Raj, page number 178. In our knowledge of Brahman, there cannot be the least touch of work, as written in the last line. Here, not even the selfless work. No. अच्छा, उसमें देखो तुमने लिखा था सेंटेंस में ब्राह्मण लिखा था, ब्राह्मण है उन्हें। जी महाराज, वो I realized and checked. उसके बाद में नॉलेज में वहां पे बियॉन्ड सेल्फिशनेस वगैरह के ऊपर चला गया है वो। उसमें ये निष्काम कर्म की बात भी नहीं, उससे भी ऊपर चला गया है। Whatever he does is not for himself, it is natural for him. Unselfishness becomes a part of his life. So he is beyond all selfishness or unselfishness. Knowledge of Brahman is a very high. Okay, Maharaj. That's all, Maharaj. Pranam. अच्छा, चलो भुवन मित्तल। प्रणाम महाराज जी। महाराज मेरा पहला क्वेश्चन है, पेज 179, लास्ट पैराग्राफ. The knower of Brahman renounces all actions. Although to outward appearances he engages himself in some work, he has no attachment for it. Such men have been described in the scriptures as karm yogins. So question है, can only knowers of Brahman be the true karm yogins described in the scriptures? Actually, I have got a question. ये very good question. कि ऐसा है कि देर साधक कर्म योगी भी हैं और ये है सिद्ध कर्म योगी। यानी इसमें he does not need to do चित्त शुद्धि कर्म, what चित्त शुद्धि is not doing because he is already established in चित्त शुद्धि। इस मन चित्त और तो कर्म जो करता है वो एक प्रकार से कर्म योगी कह सकते हो आपको, लेकिन वो बहुत ऊंचे लेवल पर, उसको आप कर्म योगी या आइडियल कर्म योगी यू कैन से, but actually he is much even higher. Is that okay? मतलब ब्रह्म ज्ञानी कर्म योगी। So the next question, page 189, isn't moderation better than fasting as enjoined in the Gita? Why did Nag Mahashay fast on master's passing? उसके बाद, in general, why do people fast when grieving the loss of a loved one? Yes, ऐसा है कि अजय माँ का बच्चा मर जावे तो उसको खाने की इच्छा होगी क्या? वो तो अपने आप भूखा रहेगी, वो जैसे कोई फास्टिंग नहीं किया उसने तो खा ही नहीं सकती दुख के कारण। तो इट वाज नॉट, उन्होंने एक संकल्प करके फास्ट किया, वो तो खाने की इच्छा नहीं, ठाकुर चले गए खाने के
प्लेट आएगी सामने तो नहीं खा पाएंगे। You understand? Out of the severe loss, desire for food. Correct. तो इसको नहीं समझना चाहिए। It is not an austerity. They cannot take it. सोचो ना, माँ जो है, अगर बच्चा उसका 10 बरस का बच्चा अचानक मर जाए तो क्या 2-3 दिन तक खा नहीं सकेगी ना? सोचो तो। बराबर। जी हाँ? ठीक। Is that clear? हाँ जी। चलो, मालिनी गुप्ता। Maharaj ji, 1 minute. Is moderation better than fasting? ऐसा है, remember, moderation is better in one sense. Fasting is a tapasya, we already discussed austerity. Austerity हमने तपस्या किया है। Sometimes रात को जागरण करना है, एक आसन में बिना हिले जुले बैठना है. There so many austerities are there. Similarly, not taking food for half an hour, 1 hour, half day, taking only once a day, sometimes doing fasting. There is no harm. It is good. It increases your stamina. It is a tapasya. Tapasya advantage is that you see in terms of fasting. Okay. Thank you, Maharaj. Pranam, Maharaj. महाराज जी, इस तरह से करने से कुछ फायदा होता है क्या? कुछ माने चित्त शुद्धि होता है? अरे 3 बार 5 बार दिन भर में खाते रहते हैं। हाँ, आजकल तो 3 बार मिनिमम खाना हो गया ना। तो फिर कभी किसी दिन आए, एक बार खा के देखो ना, क्या नुकसान। साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया महाराज, इट गिव्स यू मोर एनर्जी। साइंटिफिकली इट आल्सो फिजिकल फॉर हेल्थ। तो क्या स्किप करना चाहिए? डिनर स्किप करना चाहिए या लंच? अब ये आप जानो, आप करो। नहीं सर, महाराज जी आप डॉक्टर भी हैं, सेंट भी है। अरे एक बार डिनर स्किप करके देखो, once a week या once in 15 days डिनर स्किप। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, आपने कर्मयोगी का बताया। कर्मयोगी वो है जो निष्काम कर्म करता है, या वो महाराज? हाँ, कर्मयोगी जो निष्काम कर्म करता है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा वो जहाँ पर वो कर्मयोगी है जो कर्म के परे चला गया है, कर्म से वो तो कर्मयोगी के भी परे चला गया। हुआ ना, उसको क्या कर्मयोगी कहोगे? कर्मयोगी हम लोग कहते हैं निष्काम कर्म करके चित्त शुद्धि करने का प्रयत्न करता है। मैंने कहा ना, साधक कर्मयोगी। साधक। और कहना चाहा तो जो कर्मयोगी सिद्ध कर्मयोगी बोल, सिद्ध कर्म। चाहा तो बोलना। वेरी गुड। मालिनी गुप्ता। Yes, Swami. Pranam, Swamiji. You see, your questions are mixed up, you know. Similar questions are there in all the 7. Anyway, go ahead. Tell you. Page 174, the end. Was it not pure? I think this has been covered, but nevertheless, I'll just read it out. Was it not purity and unselfish labor that made them Manu and Yajnavalkya? Well, we ourselves can, I'm just reading excerpts. Well, we ourselves can become them if we try. Why will not our views prevail? This is the mic correct. Your voice is not clear. क्या कर रही? Keep it correct. Close to your mouth. Every time is the button. Can you hear me now? Yes. Let us see. Is it better? Yes. Okay. See, this was the quotation by Swamiji. Now the question is, Swamiji, would it not be pitching too high? Would that not be impractical? Or should we pitch for the moon? Like, for example, in Swamiji's talk on sannyasa, he says that each renunciate should be a rishi in his own right. Now, my question is that should one pitch so high, or will it demoralize a person because it's not his capacity? Why should you not
pitch high. Swami Vivekananda, when you read, you feel he is always talking of pitching high. You are the Atman, get established. You are a Brahman. Brahman is talking of always Brahman. You are Right. great. That You are everywhere, isn't it? yes. Every page, Yes. Swami Vivekananda says you are great, great, great. So why not pitch yourself Absolutely. absolutely high? Absolutely. Absolutely. Now, page 176, first para. Have faith in yourself. You people are Vedic rishis. I see it clear as daylight that you have infinite power in you. Now, the question is. Same thing, huh? Yeah. Yes. Swamiji, we keep having faith, but then every brush with the world keeps making us lose faith because people thrive on reminding you of your mistakes. My question here is. Because, listen, people remind you that you are useless every day, every moment. But every day, every moment, you must read Swami Vivekananda says, I am great. Great. You don't remind yourself repeatedly every day. No, I do. But I just wanted the clarification. No, and I wanted. Every day, Yes. Swami Vivekananda. Yes, yes. I will Because give you the story recent. After that, going to give you the personal story. Swamiji, I want to say one more point here. Is that people may not overtly say something to you in black and white, but even if you are in the vibe of people, you catch it that you're getting the negative, you're getting a feedback that what you're talking about. Again, the same thing. People will always say this opposite thing. Always they will say. Right. Always they will say. Right. Then you tell us the story, Swamiji. Please tell us the story. Okay, is it okay now? इसके अंदर एक जोड़ना मैं ये चाहता था कि यहाँ लिखा है एवरी वन ऑफ यू इज ए याज्ञवल्क्य। तो ये स्वामी जी ने बताया है कि आपके इनर क्वालिटी वही है, बट बाय पासिंग ऑफ द टाइम वो सब क्वालिटी हमारी किस प्रकार से डिसअपियर हो जाती। अरे क्या इसलिए स्वामी, क्योंकि सारा जीवन तुमने स्वामी विवेकानंद नहीं पढ़ा। हम तो 80 बरस के 85 बरस के बूढ़े हो गए, हमारी कुछ बात नहीं चली गई। हमारा कुछ नहीं चला गया। तुम लोग जरा सरा में एक क्वालिटी चली गई। आई नहीं करूंगा क्वालिटी। रोज पढ़ते स्वामी विवेकानंद को देखते क्या फर्क पड़ता। Swamiji, the next question, page 180, third para. Giving up the fruits of work means not to perform work for the good of one's own body or mind. Now, the question here is, Swamiji, is it wrong to chant the Medha Sukta or making a personal sankalpa and praying to Goddess Saraswati that please give me Medha Shakti? I'm asking. Yes, definitely. कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है ये सेल्फिशनेस नहीं है। Okay, thank you for this clarification. Thank you. You are so not much. yet clear. Character building idea is not yet come. There is a fundamental of Swami. Yes. Thank you. Thank you for the clarification. Page 174. What I want, therefore, is to introduce the study of the Vedas by stimulating a greater regard for them in the minds of the people and to pass everywhere the injunction of the Vedas. Now, the question that arises here, Swamiji, in the Vedas, it is clearly mentioned, for example, Suram na pirbet, don't drink liquor or whatever. But even when you make people aware of these injunctions, they scoff at it and they ignore it. How does one make people have a value for values like these Vedic injunctions? Abhi I am just going to tell. Swamiji is teaching the way he is to teach is not the way you are trying to do. How it is being to be done, I will tell you just now in my story. Proceed. Yes. So I proceed, and you'll tell us later, right? Just now, in 2 minutes, I will tell. Okay. 176.
Better to wear out than to rust out, especially for doing the least good for others. Again, it's a very similar question. How can you teach people higher things, especially when they don't want to learn it? They reject the higher with a panache. Is it not better than to focus on our own tapasya and develop our... Same thing. How Yes, same thing. Same. Same question, same thought process. I will, 181, I will rouse them through the infallible power of Vedic mantras. Question, is it the way then to awaken the inner power of people? Because sometimes just saying Ram, Ram or Krishna, Krishna, Krishna has more become a social usage without arousing any depth of inner feeling and conviction. विदाउट अगर उसके बाद में राम राम के बदले उसको आप पैसा पैसा करके करो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो फिर बिना सोचे समझे राम राम करने भी फर्क पड़ता है। तो जी जी महाराज जी। तो फिर definitely I got it out. 183, that activity and self-reliance must come in the people of the country in time I see clearly. Swamiji, the question here is, Swamiji, how can self-reliance come in India when the whole social fabric is tuned to make us dependent on families, dependent on social and religious organizations? How can reliance come when the pressure of society to toe the line is so high? आपको सोच रहा होगा, you go to the villages, everyone has a reason. सब लोग उठ गए हैं। Swamiji said it 150 years ago, and the whole country has a reason. You go to the villages, you find the farmer is self-reliant. He is doing his own business. People are doing everything. You are talking about people. I find everyone energetic. I'm talking about intellectually. I'm talking mentally. In our social fabric, there is a lot of emphasis on interdependence and not on independence. Whereas in again, British, I tell you, not reading Swami Vivekananda. अच्छा, अब चलो स्टोरी हाँ जी बताइए। मेरी स्टोरी है। When I was in MBBS, I started reading Swami Vivekananda. Yes. And once I started, I could not leave it. I had just 1 volume of complete works. Yes. Then I got 10 volumes of 9 volumes. And every day I used to read. I cannot help. Whenever I go, I will read. It will be in my bag also. And people started teaching. My friends used to tease me as Swamiji, Swamiji. Then I started standing first in the class. Sometimes first, sometimes second. Achha. Then I became a doctor. And I was posted. I was supposed to do the training of students, medical students, third-year medical students, for how to examine the patient. My first assignment, there was 13 students were posted, third year, 13 students were posted to me. All are failures. Second, failure. 6 महीने कम हो जाता है, एक semester that lost. So they were posted, and I noticed that these were absolutely useless, not concentrating, running away, not writing history, etc. They are something like that. I didn't tell them anything because remember, in the heart of my heart, I never felt that they were bad because I had read Swami Vivekananda. And I started giving attention to them. A girl was very difficult. She cannot write the history. I said, you write tomorrow, I will see. She did it. Then to other students, he did not come. I said, don't worry about it. You did not come. I tell you this. Gradually, these 13 students got. I did not say one word about Swami Vivekananda. I just loved them. I felt that they were great because of them. And remember, next examination, all 13 passed.
and one stood first in the class. How did it happen? Just reading Swami Vivekananda every day. Swami Vivekananda, he says, repeatedly says, you are great, you are great, you are great, isn't it? Not because he is seeing, he is just speaking. He actually feels that we are great. He actually felt that India is great. He actually feels that the villager is great. And this happens when you read Swami Vivekananda. And then these questions do not arise. What your questions have come. True, true. We have to internalize it more. True. You see, the moment you do it, everything will change. Your concept about yourself will change. Your concept about your friend will change. Your concept about your servant will change. Everything will immediately change. And you start looking at these people differently, acting with them differently. So as I told you, after that, all these people, they passed. I never talked of Swami Vivekananda. Not only this, after that, they did MBBS and they remain in contact with me. Sometimes out of the 13, one always top stand at first, the top. And when I was afterwards transferred, they had a small gathering for me and all that. So what I say is that these questions have no meaning, because once you get in full confidence that you can do everything, you are Atman, you are great, then things change. Yes, and this is what we learn. Yes, Swami, the bhav has to become strong. Conviction. Okay, is that okay? Yes, yes. Thank you. Yes, yes, yes. Satish, Thank you very much. Thank you. प्रणाम मैडम, प्रणाम महाराज. महाराज, first question. Yes. Page 175, the codes of Manu and lots of other books you have read, what is their basis? Maharaj, I do want to know what is their basis of codes of Manu and other Smritis. Basis? Veda. Veda? हाँ. तुम्हारा सेंटेंस वाक्य क्या है? समझा नहीं महाराज, समझा नहीं. Your question is, what is the basis of the Manu and Yagyavallkya, isn't it? हाँ. That is Vedas. Vedas. अच्छा, आम ब्रह्मस्मि. जय महाराज. नहीं, Vedas, not merely one Brahma. अच्छा अच्छा. वेद में तो बहुत सारी चीजें हैं. राइट राइट राइट. स्मृति के बेसिस विद्या है. अरे कर्मकांड है, उपासना कांड है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं. ठीक ठीक समझ गया. हमारा स्मृति के बेसिस श्रुति है. हाँ, श्रुति की बात कर रहा हूँ मैं. वेद में श्रुति. समझ गया महाराज. नहीं समझे फिर अभी आओगे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म. अरे हम ब्रह्मास्मि वेद का थोड़ा सा पार्ट है. हाँ जी, राइट. 90% पार्ट तो कर्म कांड है. वो दोनों बेसिस है. जो आप कहने का मतलब कि जो मनु और अदर स्मृति हैं, उनके बेसिस कर्म कांड नहीं और फिलोसफिकल जो दूसरा वेदांता है वो दोनों ही. वेदास के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. Maharaj, next question. Disciple says, but sir, what will the use of undertaking such works? Is not the death stalking us? Maharaj, मेरा भी यही कहना है कि this is the problem of मायावादीज और वेदांतिस्ट. महाराज यही सोच होती कभी कभी, this world is mithya, death is stalking us. Maharaj, then how can they work with the passion of a man with worldly missions? जिस तरह वर्ल्डली मिशन के साथ जो लोग काम करते हैं मिशन के साथ, तो जो हम ये जो वेदांतिस्ट है, हाउ कैन दे वर्क लाइक दैट? अगर आप ठीक मायावाद पे पूरे 100% एस्टेब्लिश हो गए तो तुम मुक्त हो गए. तुमका शरीर अपनी माया लगेगा, संसार माया लगेगा. तुम कौन हो? आत्मा तो है ना. मायावाद के पीछे आप परमात्मा तो आत्मा तो है जी महाराज. तो आत्मा भी की बात तो होगी. मायावाद का अर्थ ये भी है कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ. ऐसा व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता, फुल्ली एस्टेब्लिश होने वाला व्यक्ति.
तो फुली एस्टेब्लिश होगा तो मुक्त हो जाओगे तुम। महाराज मेरा भी यही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो काम कैसे करें? अरे जैसे काम तो छोड़ो, अरे मुक्ति हो गई तो उसके बाद काम की जरूरत क्या है? जी जी क्यों करेगा काम? मैं डिसेबल की बात को ही आगे लेके जा रहा हूँ महाराज। वो कह रहा है कि इन कामों करने का क्या फायदा? स्वामी जी कह रहे हैं उनको भी ये काम करने हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इनके करने का फायदा क्या? डेथ इज स्टॉकिंग अस, दिस वर्ल्ड इज माया एटसेट्रा। वो हाँ ऐसे तो स्वामी जी बात ये भी कहते हैं, एक बार कहिए का आता ही है, किसी ने बातचीत हो रही है, अच्छा ठीक है तुम काम नहीं करो हम बैठ जाओ, लेकिन जी याद जी रखो हम तुमको खाना पीना देंगे, याद रखो, लेकिन एक मिनट भी आओ दूसरी तरफ पुनः कभी भी किसी तरह उल्टा पुल्टा काम करने का कोशिश करने किया तो तुमको डंडा मार के हम काम पर लगाएंगे। ये मायावाद में प्रतिष्ठित होना इतना आसान नहीं है। जी महाराज, वो तो एक किस्म का एक्सक्यूज हो रहा है ना उनकी तरफ से। हाँ हाँ, नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक प्रश्न का एक्सक्यूज है ये। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो देखिए पैशन नहीं, उसी को बेसिस बना के वेदांती भी जो होते हैं वो भी ब्रह्म देखते हैं सर्वत्र और ब्रह्म की सेवा करते हैं। केवल मायावाद जो है ना वो शुरू शुरू का चीज है, उसके बाद में तो है अहम ब्रह्मास्मि भी तो है। जी महाराज, हाँ जैसे यदि स्वामी जी ऐसे का सुनिए, ऐसे मायावादियों को तो डंडा मार के ठीक कर देते हैं विचार करके। जी महाराज, वो पैशन कैसे आता है? जो जैसे लोग की वर्ल्डली एम्बिशंस में एक पैशन होता है कि मैं ये काम करूंगा, ये प्राप्त करूंगा, ये मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है तो मैं उसको 4 बना। आप आके देखिए ना, रामकृष्ण मिशन में बड़ा हॉस्पिटल हम चला रहे कैसे आया पैसे ए निवेदिता, ये कौन बोल रहा है? मोबाइल फोन किसका खुला हुआ है? बंद करो। बंद करो। ये तू निवेदिता कौन है? मोबाइल फोन बंद करो। संजय जी म्यूट कर दीजिए। मेरा तो म्यूट है महाराज, मेरी तरफ से ही डिस्टर्बेंस आ रही थी, मैं थोड़ा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन चल हो गया कि नहीं हुआ? सेकंड हो गया महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक हुआ महाराज। कि नहीं हुआ? नहीं ठीक है महाराज। वो जो पैशन है वो आत्मा से आता है, वो जो सभी को आत्मा मानना और नहीं नहीं, ऐसा है कि मायावाद जो है ना वो ओनली पार्शली माया यदि है सब कुछ तो माया बेस किसके ऊपर है? हाँ जी 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 महाराज। आत्मा या ब्रह्म तो होगा ना, उसके ऊपर तो माया होती है। जी जी महाराज जी महाराज। महाराज जी मैं इस सिलसिले में एक चीज पूछना चाहता हूँ। कोई कई लोग बोलते हैं कि ये संसार तो अनित्य है, तो हम इतना काम क्यों करेंगे? स्कूल बनाना, ये काम करना, खड़ा ये करना, वो करना। हाँ तो ये क्या वो एक ही चीज हो गया मायावाद? सुनिए सुनिए, उनको बोलिए अनित्य है तो तुम बैठे रहो ना। अच्छा यही चीज सेम चीज हो गया अभी जो बताया आपने। नहीं, मैं खाना खाते समय जगत अनित्य नहीं होता है, वो सत्य हो अच्छा जाता है। संसार के काम करने में जगत सत्य हो जाता है। वो सिर्फ सेवा करने की बात में करते हैं कि जगत अनित्य है, सेवा करने से क्या पता। जी महाराज जी, थैंक यू। तो फिर ये सभी कुछ अनित्य है, बिल्कुल है, फालतू है, जगत बिल्कुल फालतू है। जरा विचार करने पे लगा है कि हमारा जाना आना सब ये संसार ही आके सब कुछ तो मृत्यु में खत्म हो जाएगा। क्या खाना क्या करना, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जहाँ तक सेवा का प्रश्न है जगत अनित्य है, ऐसा नहीं काम। ये फालतू की बातें हैं जो अनित्य की बात। रामकृष्ण मिशन तो कभी अनित्य नहीं बोलता। इतनी सेवा कर रहे हैं, सन्यासी हैं। जी महाराज जी। पर महाराज वो संसार के काम भी तो नहीं ना कर सकता सन्यासी जो है, उसको संसार के काम भी नहीं ना कर सकता जो संसार सन्यासी हो गया। वही तो अगर ऐसा है तो बहुत ऊंचा स्थिति का होता है वो, फिर एक स्थान पे पड़ा रहेगा वो, और उसको खाना मिल जाए तो मिल जाएगा, पहवारी बाबा जैसा पड़ा रहेगा। याद रखिए। महाराज मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे हमारी अवस्था है तो हम भी इतना काम संसार का नहीं कर पाते कि जैसे दूसरे लोग करते हैं, हम नहीं कर पाते। कि हमें क्या करना है, बस एक घर मिल गया काफी है हमें। जो संसार के कर्म कर्तव्य कर्म करो और भगवान में मन लगाओ, विचार करो और भगवान में मन लगा के कर्म करो। तो कर्म करोगे ये सोचो कि भगवान से कर्म कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हो वो सोचो कि ये भगवान है। राइट राइट महाराज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज वो अपने उसमें से है इंस्पायर्ड आर्ट्स। तुम्हारा एंगल करो तो मोबाइल फोन का एंगल ठीक से करो तो थोड़ा ठीक हो। ठीक महाराज, अब ठीक है महाराज, अब तो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो तो ठीक है महाराज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायर्ड आर्ट्स से, तो स्वामी जी कहते हैं टॉकिंग ऑन पतंजलि योगा एफरोजम्स, स्वामी जी उसके बारे में बात कर रहे हैं पतंजलि योग एफरोजम। स्वामी से ईश्वर इज द आत्मा एज सीन और ग्रास्प्ड बाय माइंड। ईश्वर इज द आत्मा एज सीन और ग्रास्प्ड बाय माइंड। वही तो मैंने कहा महाराज एंगल ठीक करो ना बाबा, वो कुछ हो जाता है। अब ठीक है महाराज, अब ठीक है। अब देखो तो बोलना पूरा सेंटेंस आएगा तब। अच्छा जी महाराज, वो सभी में आ रही डिस्टर्बेंस आ रही महाराज, उसमें बोलो क्या प्रश्न क्या है स्वामी जी का? ईश्वरा इज द, स्वामी जी सेज ईश्वरा इज द आत्मा एज सीन और ग्रास्प्ड बाय माइंड। जी, वो जो उनकी डेफिनेशन थी ईश्वर की और पर्सनल गॉड। माय क्वेश्चन इज महाराज, ये पतंजलि योग की जो डेफिनेशन है ईश्वर के बारे में, आई थिंक दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट स्वामी जी ईश्वर की डेफिनेशन पतंजलि के अनुसार ईश्वर की डेफिनेशन है क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जिसमें क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म का विपाक नहीं है, आश्रय नहीं है। ये चार टेक्निकल चीजें हैं पतंजलि की योग सूत्र के। इनसे अपरामृष्ट, इनसे जो छुआ नहीं गया है उसको पुरुष विशेष है, वो ईश्वर यानी पुरुष यानी एक आत्मा विशेष जिसमें क्लेश कर्म इत्यादि नहीं है, उसको पुरुष कहा गया है पतंजलि ने। लेकिन पुरुष विशेष हो गया ना महाराज, एक आत्मा विशेष आत्मा होगी। हाँ विशेष आत्मा। लेकिन जहां तो स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर इज आत्मा एज सीन और ग्रास्प्ड बाय माइंड। एज सीन और ग्रास्प्ड बाय माइंड। आत्मा which is seen and grasped by mind। जी 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 महाराज। क्या क्या कहा है? बोलो तो पेज नंबर क्या है उनका? स्पाई टॉक्स में है महाराज, जुलाई 21 संडे का है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया समझ? वो पतंजलि जो कि एफोरिज्म के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पतंजलि जो के एफोरिज्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, उसमें वो कह रहे हैं कि ये पुरुष विशेष है, यानी एक विशेष प्रकार की आत्मा है जिसको हम सीन और ग्रास्प उसको समझ सकते हैं, यही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ महाराज, ऐसा निकाल सकते हैं, ऐसा मीनिंग पर्सनल गॉड पर। जी जी महाराज, पर वो ये वेदांत की डेफिनेशन के साथ भी मेल करता है महाराज। थोड़ा सा सुनो फिर वही बात है, थोड़ा सा दूर रखो तो इसका माइक को तुम्हारे। अच्छा जी महाराज, ये वेदांत की जो डेफिनेशन है पर्सनल ईश्वर की, वो भी तो सेम ही है। ईश्वर की क्या है देवाय वेदांत की डेफिनेशन? मुझे नहीं मालूम। वेदांत की डेफिनेशन भी जो स्वामी जी पर्सनल गॉड की डेफिनेशन देते हैं कि जैसे ईश्वर है ब्रह्म प्लस माया, तो जितना हम उसको जानते हैं उतना पर्सनल गॉड है। नहीं तुम्हारे प्रश्न ही समझ में नहीं आया, उसके बेसिस क्या चाहते, क्या हो जानना चाहते? अरे भाई स्वामी जी ने कहा है कि आत्मा जो है, ईश्वर जो है, उसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यही तो बोल रहे हैं स्वामी जी। नहीं महाराज, स्वामी जी पर्सनल गॉड में ईश्वर की डेफिनेशन दे रहे हैं कि एक तो ब्राह्मण है, ब्रह्म है, ब्रह्म तो परमात्मा है, लेकिन एक ईश्वर है। ईश्वर जो जिसको जितना हम ब्रह्म को जानते हैं वो ईश्वर है, दैट इज पर्सनल गॉड और ईश्वर। हाँ, तो अब क्या है तुम्हारा प्रश्न? क्या? लेकिन जो पतंजलि योग शास्त्र में है, उनकी डेफिनेशन है कि विशेष ईश्वर विशेष है, एक पुरुष विशेष। क्योंकि वो वहां पर आत्मा का प्रश्न पुरुष की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी जी, पुरुष यानी एक आत्मा है, तो उसमें जब दे रहे थे उसमें वो कहते हैं कि आत्मा एक स्पेशल आत्मा है। तो पतंजलि योग सूत्र में तो ब्रह्म को भी नहीं लाया गया है ना। नहीं महाराज, उसमें ब्रह्म नहीं लाया गया, वहां पे ब्रह्म की बात नहीं है।
वहाँ तो केवल एक जीव अपने चित्त वृत्ति निरोध है ना, जी 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 महाराज, तो जी एक महाराज। अलग तुम जीव लेकिन अलग ईश्वर हो, की बात तो है वहां पर। एक आत्मा है, एक आत्मा है और उसके साथ में उसके सब विचार वगैरह हैं, चित्त वृत्तियां हैं, उसका निरोध करोगे, चित्त वृत्तियों का निरोध करोगे तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तो जी उसमें महाराज, कहते हैं ईश्वर के प्रणिधान के द्वारा, ईश्वर के ध्यान के द्वारा ये भी हो सकता है। तो ईश्वर क्या है, तो ये पुरुष विशेष है, उसमें एक विशेष आत्मा है, विशेष प्रकार की आत्मा है, उसमें ये गुण कर्म नहीं है, पाप नहीं है इत्यादि है, वैसे आत्मा है ये। उसके बाद ध्यान करो इसके, और तुम्हारे को उसके ऊपर ईश्वर प्रणिधान के द्वारा चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज सीन और ग्रास्प्ड बाय माइंड, मतलब नहीं, जितना वो तो हम ठीक है, उसको प्रश्न क्या है, ये जितना, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप ध्यान कर सकोगे। राइट राइट माइंड, ठीक है महाराज, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, क्वेश्चन रिलेटिंग टू साधना। महाराज, contemplating on the form of Thakur or Ma, it gives a sense of peace and spirituality immediately. एक मिनट, क्या अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। महाराज मैं इसको नेक्स्ट टाइम कर दूं, इसको ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। यानी ऐसा है कि वो तुम्हारे सुनाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट चलो मैं देखता हूँ, वो मैं कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस हो रही मेरे क्वेश्चन आंसर जो है। अच्छा बोलो बोलो, अब चलने दो, कंटिन्यू करो। हाँ अनम्यूट कर लीजिए सतीश जी। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया। उनका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। सतीश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट कर दिए गए सतीश जी गलती से, आप जरा अनम्यूट कर लीजिए। माइक्रोफोन अनम्यूट जी। अब ठीक है ना? हाँ बोलो। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, एक मिनट महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्पलेटिंग ऑन द फॉर्म ऑफ ठाकुर और माँ, उससे हमें शांति, इमीडिएटली वी गेट पीस ऑफ माइंड। बट सतीश जी आपने अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपका बैंडविड्थ कम है इसलिए वॉइस चोक हो रहा है, तो वीडियो बंद कर लीजिए, सिर्फ माइक में बोलिए। राइट राइट महाराज, अब ठीक है महाराज? हाँ बेटर है। जी जी महाराज, जब हम ठाकुर और माँ पर उसकी फॉर्म पर कंटेम्पलेट करते हैं तो हमें इट गिव्स अस इमीडिएट पीस एंड पीस ऑफ माइंड, हमें इमीडिएटली शांति मिलती है। लेकिन हमें एक विचार रहता है कि वी आर नॉट कंटेम्पलेटिंग ऑन हिज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ ईश्वर और एट्रीब्यूट्स। शुड वी कंटेम्पलेट सिमल्टेनियसली about Thakur's real form of Ishvara और ब्राह्मण? अच्छा ऐसा करिए, सुनिए, वह जब ध्यान शुरू करेंगे जी महाराज, तब सबसे पहले परमात्मा का या परमेश्वर का चिंतन करिए, यूनिवर्सल फॉर्म का। अच्छा जी। उसके बाद सोचिए कि उसी यूनिवर्सल फॉर्म ने हमारे ठाकुर का रूप ले लिया। राइट राइट महाराज, और उस ठाकुर का रूप का ध्यान कीजिए अच्छी तरह एकाग्र मन से, और उसके बाद में जब ध्यान समाप्त करेंगे तो पुनः उस ठाकुर के रूप को ब्रह्म के अंदर विलीन। दिस इज द मेथड महाराज जी। जी हम जब पहले विचार कर लेते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तभी तो विचार करने की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ध्यान की बात हो रही है, विचार को मत मिलाइए। नहीं महाराज, जब पहले तो हम विचार कर लिया कि ठाकुर, हमारे मन हमारा क्लियर हो गया कि ठाकुरी जो है वो ब्रह्म है, ठाकुरी पार ब्रह्म है, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उस वक्त तो ये ख्याल नहीं आता ना, उसको पहले कर लेना चाहिए ना, जैसे आपने मतलब बताया। मैं मिला रहा हूँ ना दोनों को, दो चीजें एक साथ कैसे कर सकोगे? राइट आंख राइट, बंद करके ठाकुर को सोचोगे, रूप को सोचोगे, और उसके बाद ब्रह्म को सोचोगे, रूप को सोचोगे, ब्रह्म को सोचोगे, रूप को सोचोगे, ब्रह्म को सोचोगे, ऐसे करोगे? जी जी महाराज, वही मेरा क्वेश्चन है। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा, कहा
कि शुरू करो तो पहले ब्रह्म का चिंतन करो, राइट राइट और उसके बाद सोचो कि उसी ब्रह्म ने ठाकुर का रूप लिया। अब कंटिन्यूअसली केवल ठाकुर के रूप का ध्यान रखो। ठीक ठीक। और जब समाप्त करोगे तो फिर ठाकुर के रूप को विलीन करके ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म में विलीन करके समाप्त। राइट राइट महाराज, राइट, समझिए महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, I try to spiritualize my whole life, but does not happen. महाराज जब भी हम काम शुरू कर देते हैं, जहाँ ऑफिस में जाते हैं, जो एनी सोसाइटी में बैठते हैं, तो हमारा जो मूड जो है वो स्पिरिचुअल मूड है वो चेंज हो जाता है। दैट इज माय क्वेश्चन। तो स्पिरिचुअल मूड वो जो घर में बैठ के करते हैं वो बाहर तो नहीं रहता? ये नेचुरल है भाई। हम भी जैसे हैं तो हम अपने कमरे में बैठे ध्यान जप कर रहे हैं, एक बात है, लेकिन अब मोनेस्टिक डॉक्टर बन के जाते थे तो डॉक्टर का भाव हो जाता था। जी महाराज। तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा 3 घंटा डॉक्टर की प्रैक्टिस करते थे, तो डॉक्टर का ही भाव मन में बना रहे। जी महाराज। और बीच बीच उसके में बाद याद तो करते रहते हैं। बाद में जब ध्यान करने बैठते थे थोड़ी देर तक डॉक्टर का भाव बना ही रहता था, पहले भी उसको विचार के द्वारा दूर करना पड़ता है, भगवान का ध्यान रखना। महाराज बीच तो बीच में ये तो स्वाभाविक है। सिर्फ महाराज यही है, इसको बता दिया हम लोगों को, जिनसे आप बातचीत कर रहे हो, जिस रोगी को देख रहे हो वो भी भगवान है। उसी प्रकार आप भी अपने संसार के लोगों से जब मिलेंगे जुलेंगे तब सोचिए कि वे भी भगवान है। कम से कम थोड़ा सा बनाए रहो। थोड़ा सा बन जाता है महाराज, थोड़ा सा बनता है। जी राइट राइट महाराज। अच्छा, थोड़ा सा उसके बनता ऐसा है कि उसके साथ में याद रखिए, जी 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 एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग यू मस्ट हैव गुड मेडिटेशन। राइट राइट महाराज। संडे के दिन, हॉलीडे के अंदर गुड मेडिटेशन सारा टाइम लगाओ उसी के। राइट। और बीच बीच में 2-3 महीने में 4-5 दिन 5-7 दिन एकांत में चले जाओ, ध्यान जप करके उसको स्ट्रॉन्ग करो। जी महाराज, जी महाराज, वो भी करना चाहिए। बट स्वामी जी, एक क्वेश्चन हियर, आपने ये स्टेडीनेस कैसे आ गई कि द एक्सटर्नल वर्ल्ड स्टॉप बॉदरिंग यू? ऐसे कैसे होता है कि इंसान के बाहर की दुनिया, उनके विचार कुछ आपको बॉदर नहीं करे? शील्ड कैसे आप इतना स्ट्रांग हो जाता है? क्योंकि आप पे तो असर नहीं होता। तो ऐसा हम है आपसे कि पूछ रहे हैं। देखिए उसके लिए ठाकुर ने बड़ी क्लियरली बताया कि संसार में घुसने के पहले आप मक्खन बन जाइए। अब पानी में मिल के रह सकते हैं, लेकिन दूध में मक्खन पानी मिल जाएगा। तो निर्जन में पहले कहते हैं, संसार में घुसने के पहले 4-6 महीने एकांत में जाके कठोर तपस्या करके मक्खन बन जाओ, उसके बाद संसार में। हाँ, ये है। ये देखिए अब हम लोग सब संसार में फंस गए। राइट। अभी क्या करना है ये मैंने बताया, सुबह शाम Yes. अच्छा मेडिटेशन करना, Yes. संडे या हॉलीडे के लिए पूरा समय उसके लिए लगाना है, और बीच बीच में 3-4 महीने में 7 दिन 15 दिन निकाल के चले। ठीक है? Yes, sir. Thank you. संजय, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन महाराज। But Maharaj, Japa and Dhyan is also not constant. In as much as sometimes my mind concentrates automatically and sometimes it does not happen. What is the reason, Maharaj? No, ये तो खैर Physically मन and का mental. स्वभाव है, क्या करोगे? समटाइम्स द माइंड इज इन पूर्व संस्कार है जो कभी कभी ऊपर उठ जाते हैं, तो ये एक स्वभाव है, क्या करोगे? महाराज विचार भी नहीं आए होते फिर भी नहीं माइंड जो है वो उसमें नहीं आता, स्टेज में नहीं आता। जैसे विचार भी नहीं आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा विचार आ रहे हैं, ऐसा फिर भी नहीं होता। और कभी मतलब कि जैसे सूखा सूखा सा होता है मन, कभी कभी अपने आप ही इतना उसमें ब्लिस होती है। ऐसा है, कभी कभी होता है तो ठीक है, कोई चिंता नहीं करने की है, लेकिन वो फ्रीक्वेंट होने पर उसको फिर कॉन्शियसनेस में यानी आत्मा के उसमें डालना पड़ता है। अब वो कुछ जड़वादी है या कुछ निहिलिस्ट वगैरह है या कोई बुद्धिस्ट वगैरह होते होंगे जो मन को शून्य करना, इसके बारे में मैं नहीं बता।
ये हम लोग तो हमारी परंपरा में यतीश्वरन जी वगैरह को वॉइड को शून्य को एनकरेज नहीं करते। महाराज वो फिजिकली भी थोड़ा यतीश्वरन जी होता को है। पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि वो शून्य को एनकरेज नहीं करते। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? महाराज फिजिकली भी होता है, जैसे मतलब कि अगर फिजिकली हम पहले अपने शरीर को शांत कर लें, माइंड ब्रेन को शांत कर लें, फिर जो ध्यान अच्छा होगा, ये भी होता है क्या? नहीं, ये तो जो प्रोसेस बताई ही गई है। जी जी जी। ठीक से मुंह हाथ धोकर स्वच्छ होकर स्वस्थ होकर थोड़ी सी चाय पी के एकांत में बैठिए, सारा वातावरण अच्छा होना चाहिए, एक भाषण अच्छा होनी चाहिए, या चेयर हो तो चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, सीधे बैठिए। तो ये ध्यान के जो फिजिकल फिजिकल एस्पेक्ट है उनको तो महत्व दिया गया, उसको कैसे ऐसे होता है महाराज, कभी जैसे बाजू जो है कभी ऊपर को जाती है और कभी जैसे मतलब कि वो ऐसा नहीं होता दिमाग को। क्या जाती है क्या? बाजू जो मतलब कि आपकी जो सेंसेशन है, ऐसा लगता है कभी ऊपर को जाती हैं, ध्यान अच्छा होता है, और कभी सेंसेशन ऊपर को नहीं जाती, तो ऐसे ध्यान अच्छा नहीं होता। तो ऐसा है कि अगर वर्षों का अभ्यास होगा तो हमेशा ऊपर की ओर जाए। जी जी जी। तो अभ्यास नहीं है, हमारा नीचे का मन नीचे जाने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वो पुराने अभ्यास के कारण मतलब कि इंटरमिटेंटली होता है, कभी अपने आप ही अच्छा हो जाता है, कभी ऐसी बात। अब वो तो स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर हमको अच्छा स्वभाव का बनाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा ही होना चाहिए कि हमेशा ही अच्छा हो। जी एक आध दिन कभी बुरा हुआ तो ठीक। ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ, वैसे ही होता है ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत मानिए, हमारा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। प्रसाद तो करते ही है हमारा, मतलब कि बस वो जैसा। करते रहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं है। अपने हाथ में नहीं, यानी जन्म जन्मांतर के संस्कार तो अपने हाथ में नहीं है, और कभी कब उठेंगे कब नहीं उठेंगे, राइट। उसकी क्यों चिंता कर। ठीक ठीक महाराज, ठीक ठीक। और कोई प्रणाम। प्रश्न है? महाराज जी, महाराज महाराज जी पूछो महाराज जी। आपने पहले क्यों नहीं पूछे? एक सप्ताह नहीं नहीं, पिछले सप्ताह भी नहीं पूछा था, इस सप्ताह भी नहीं पूछा। नहीं, ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो नहीं पूछूंगा। अब पूछ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले पूछना चाहिए, आपको भेजना चाहिए कुछ। मैं अभी अभी अरे दिल्ली। आप पिछले आपको पहले से भेज देना चाहिए। अभी आज मैं परमिट कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर भी क्या। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, एक जगह एक स्वामी जी का ही होगा कि ये है, उन्होंने बताया कि ओ लॉर्ड, फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट आई एम द सेम एसेंस ऑफ एज दी, दिस मिजरेबल प्लाइट ऑफ माइंड is a result of my being bound by maya or illusion and deluded by the sense of me and mine, of identifying myself with the body and my being a slave to evil thoughts and evil desires and evil tendencies. Thus, O Lord, I have become afflicted with sickness, sorrow, misery, wretchedness, fear, and restlessness, have become mere, mean, and low and impure, and subject to death and to the tyranny of the worldly objects. I am helpless, resourceless, destitute, small, weak, and worthless. Be thou kind to me, O Lord, out of thy infinite mercy, and destroy all my sins, faults, wants, and miseries, and root and branch, so that I may awaken the infinite power which is lying dormant and lifeless within me, so that I may realize thy ever true nature, so that I may realize that which is my true nature, the eternal, ever pure, ever free, ever luminous self. तो ये चीज को हम अपने एवरीडे लाइफ को जो साधन पद्धति है उसमें कैसे इसको पंच कर सकते हैं? अब ये कभी बार ऐसा करना कि आपकी मैं नहीं जानता आपकी बताइए। महाराज जी, साधना पद्धति के प्रारंभ में इसको पढ़ लिया कीजिए रोज। अच्छा अच्छा, हाँ, थैंक यू महाराज जी। या शाम को एक दिन में एक बार या 2 बार इसको पढ़ लिया हर बार पढ़ते हैं, दोनों टाइम बैठते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम बैठते हैं। अब वो तो आपकी साधना पद्धति जो मुख्य है ना, मेन है, हाँ, जो ऑलरेडी गॉट ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रूटीन है,
जब ध्यान है, Yes. सब कुछ है, ये हाँ आपको अच्छा लगा, ये अच्छा लगा है, तो इसको आप सुबह शाम एक बार रिपीट कर दीजिए और क्या। अच्छा, पार्ट, इसको पार्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई गलती तो है नहीं। मैंने हमें जो ये आप कर लीजिए जैसा ठीक करना चाहिए। नहीं, मैंने सोचा कि मेरा कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा ना, मतलब है कि मैं जो नहीं, ऐसा है कि ये आपकी बेसिक फंडामेंटल जो साधना पद्धति है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम नहीं मानते हाँ कौन सी साधना पद्धति है, आपके इष्ट का चिंतन है, गुरु ने बोला है किस प्रकार से करना है, ये बताया गया गुरु ने। हाँ जी जी महाराज जी, किताब में मुझे बताओ। वो प्रोसेस फंडामेंटल है, अच्छा, और उसको ये ऐड, प्रोसेस ये अच्छी लगती तो उसको कोई बुराई नहीं है। इसको सुबह शाम आप रिपीट कर लीजिए, बैठ के थोड़ा 5 मिनट चिंतन कर लीजिए उसका। ठीक है महाराज जी। वो शुरू करने का, ये शुरू महाराज जी आपका वॉइस, बदल जाएगा, ही चला जाएगा। महाराज जी आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है, थोड़ा रिपीट कीजिए प्लीज। ऐसा है कि ये जो है, ये आपने अभी तो अच्छा लग रहा है, कुछ दिन करोगे उसके बाद में छूट जाएगा, ये भी दूसरी चीज अच्छी लगने लग जाएगी, ये मन का स्वभाव है। इसको हैबिट बना लेंगे। अब कर लो तो बहुत अच्छी बात। मैंने इसको, मेरा मेरा क्वेश्चन यही है महाराज जी, इसको करने से मेरा जो फंडामेंटल जो मुझे बताया गया गुरु द्वारा, तो उसमें का पहले करूं या फिर बाद में करूं या कैसे करूं, वही समझ में नहीं आ रहा। उसे जैसा आप ठीक समझे कर दीजिए, लेकिन उसे मिक्स मत कीजिएगा, पहले बाद में जब भी चाहे कर। हाँ, जैसे आपने बताया, पर्टिकुलरली एंड में कर दीजिए। थैंक यू महाराज जी, आपने बताया एंड में जो मनोबुद्धि अहम का चित्तानी नहम नचो स्तोत्रो जीवे व नचो, वो तो मैं तो करता रहता हूँ, तो उसके बाद में फिर इसको ऐड करूं या फिर कैसे करूं? वही तो उसी प्रकार की तो चीज है। वो तो करते रहता हूँ, आपने जो बताया। अब ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो कर दीजिए। Okay. नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है। जय श्री महाराज श्री जी, गुरु महाराज जी की जय, महामाई जय की महामाई की जय, स्वामी जी महाराज जी की जय स्वामी जी महाराज जी की जय, बोलो राजा रामचंद्र की। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, हमारे यहाँ तो दुर्गा दुर्गा दुर्गा। नेक्स्ट कौन सा होगा नेक्स्ट क्लास इसी का?